of the southern side. Hard hitter batter. Got injured in the first game. Oh, it's in the air. There is a fielder. Can they get the first one? Yes, they can. It's a brilliant catch by Abrar to get rid of Zishan Ashraf. Even the promotion couldn't help him much. Zishan, his bad run continues. Really couldn't manage to get anything out so far in this tournament. A wild swing, he was nowhere near the pitch of the ball. He's trying to enforce the shot. And Abrar had no problems in grabbing it into safe hands. Mir Hamza strikes for Sindh. One down and Zishan has to go back, scoring 1 run. ATF Southern Punjab, 2 for 1. How many times we have seen that batters who try to dominate with the new ball have lost their wickets. You got to learn this if you want to be successful at the highest level. Because if you don't learn at this level, you're not going to improve. And we've seen that on these pitches, on these conditions, that batters who've started it and come to look to dominate, they've not been successful. On the other hand, batters who've taken their time, played conventional cricket, and then look to accelerate, been successful. Mohammad Shehzad walks in. He'll join Zain Abbas in the middle. He looked decent with the bat as well. That's a good run away from the mid-on fielder. Probably it could have been a gamble for Zishan. They would have given him the opening slot just to go and try to hit shots. If it doesn't work, he's back. 1 over gone, ATF Southern Punjab, 3 for 1. Yeah, you make a good point that he might have been given a license to thrill, but still that does not mean that you go insane. You start hitting every delivery out of the park. That is not going to happen against quality bowling lineup. We saw yesterday Central trying with the Clark. Didn't work out for them because he tried too many shots early on. And when you're a makeshift opener, you're a makeshift and a wicketkeeper batter, you're an all-round cricketer, does not necessarily mean that you have to go out and just lose your wicket. You still can apply yourself, you can still take your time and then look to accelerate. I think that's the proper way of playing on a pitch like this. Anwar Ali from the media end. Good. Right on the money. And I'm not sure we talk about T20 being hard on bowlers, but it's really hard for batters as well. No feet movement whatsoever. He knew that there was a slight swing. Never got to the pitch of the delivery. It was nothing of a shot. You've got to give respect to your opponent. You just cannot come and just throw the hands on the ball. It's not going to work out at this level. Another good single. Zain Abbas, he played a superb innings the other day. Well, things haven't been quite coming together for ATF Southern Punjab. They do have names who can make impact, but it's just the finishing thing that's missing. Yeah, it's missing in most of the teams. Other than KP, I think, and Northern have got talent down the order. Sindh also have players, but they're not quite coming at the right time for them. Zishan Ashraf should have learned something from Zain Abbas, the way he played in the last game. Took his time and had played all the shots. His strike rate was excellent too. So you can always catch up. Just a shimmy down the ground. Shehzad, he was really good the other day. But Zain Abbas, that's the main person you would like to target quite early if you're Sindh. He played some exceptional shots. He used the crease really well. He went after the pacers, he went after the spinners. Few lucky shots flying every now and then, but he did middle
superbly. Played around the field. That was a really big one. Just travelled all the way. Huge sixes. 81 just off 46. Nudging it around so far. See, that's my point, Marina. Zain Abbas played within strike rate of 176. He took his time, and all these shots that we just saw were conventional cricketing shots, proper cricketing shots. You can still get runs, you can still get that strike rate high by playing conventional shots. So you just cannot come and just start blazing and lose your wicket. That's not on. Do you feel being a batter, if you're having a bad run, is T20 the right format to gain it back? There's so much pressure. That's what happens when you restrict yourself to one format. Zishan Ashraf is just, I thought, just plays one-way cricket, that's T20. And when you have to get your form back, it's one way of doing it. Some feel people are comfortable. He changed his number for that and didn't work out for him. But maybe, in my opinion, if I was him, maybe take a game off, come back again, come back fresh with a healthy mind and look hungry. Maybe that might work. Irfan Fazil, what is he saying? Well, he's saying you played it very far from the body. Have to take your body towards it. Good bowling, just the 3 singles. Coming off the over, Anwar Ali, pretty economical. 80 after 2, 6 for 1. ADFSP has lost an early wicket in form of Zishan Ashraf. They're 6 for 1 at the moment. Zishan Ashraf, the wicket-keeper batter in the side, lost his wicket to Mir Hamza. You know what he's capable of. You know what he can be a destructor when he gets going. As far as the bowling is concerned for me, for Sindh. Oh, that's punched. Really punched hard. Picked up the length quite early, and it's perished into the boundary. You will get deliveries like this. You have to wait enough for this. That was a glorious shot. Just half length, ideally suited for Zain Abbas, and the sort of form he is in is not gonna miss out on that. Even Shajil Khan couldn't do anything. That's better length. Good follow-up delivery from Mir Hamza. Keep it up, pitching up. That's the way to go it for the new ball. It was very interesting to see Irfan Fazil speaking to Zishan Ashraf when he lost his wicket, and he was probably telling him how he should have played. Irfan Fazil was a fast bowler, giving him some few tips, and rightly so. He's an international cricketer. It's picked up nicely. The fielder will just watch it sail over the boundary. Few bounces into the fence. Another 4 for Zain Abbas. He's loosening the screws. Looking for sun swing. Mir Hamza pitching it up. It's not working. And for somebody like Zain Abbas, who's the man in form, have a look at that. He looking for some swing, pitched it up. A nice use of the wrist by Zain Abbas. And the placement was very nice too. There was a fielder placed though. Played it away from him. Good result. No! Good hard length. What he did on the previous delivery was just a step down the track to negate that swing. At times it's hard. We're talking about the batters. Make a comeback. Oh, he's full of words. Irfan Fazil, also known as Babu Bhai. Have a look at that. That's what he's saying.
Maybe you're not looking at the game, just throwing your arms at the ball, and it had to flow towards the third. He's shy. Don't show me on camera, please. What a delivery. It took off. Mir Hamza, you cannot take this lad easy. He'll come back with the hard deliveries. 2 dots. Look at that carry. Yeah, sort of a tennis ball bounce. Just kicked on after pitching. We know what potential Mir Hamza has in him. And no fast bowler ever likes it to be hit towards the boundary. And couple of them, yeah, he's going to come back hard on you. Wait karna. Oh, got away with that. Outside off stump could have gone for another boundary. But after 380 of Southern Punjab, 14 for 1. Right arm over the wicket. Crowd coming in. The temperatures are getting cooler. And that's another initiative. The crowds, we can see them. Asif Mahmood, he has his first outing today. And he's been given the ball from the media end. Good luck, young man. We're really looking forward to see you ball. That's driven beautifully, but good fielding in the covers. Anwar Ali, he's always on his toes. Mohammad Shehzad. Nice and easy, nicely driven. It's so heartening to see these young lads coming from small towns. He's from Dera Ghazi Khan, this young lad. We've got a player from Laya also playing in this national T20. Ali Majid Shah from Kabirwala. Just amazing to see this young talent coming from these areas. Oh, he's asking the question. But Nasir Hussain, he shook his head, not interested. And tell you what, it looked really close deal to me. Oh, what do I say? That was mighty close. Probably the height, that might be the question for Nasir Hussain. Didn't seem interested at all. Lucky escape. Oh, that's gone. That flew over the infield. Just enough wood on it to keep him safe. And he'll pick up a boundary. That's a good start by young Asif Mahmood. He's frustrated. Mohammad Shehzad. Oh, look at that. That was a bit of a nothing shot. Just like Zishan Ashraf. Threw his arm on to the ball. And lucky that it went over the fielders for a boundary. I think he wasn't expecting Asif to pitch it the hard length and get that bounce. Probably he thought he might pitch it up again. Still pushing hard for 2. Not available. Kingdom Valley National T20 Cup is your premier domestic tournament. It is the platform where youngsters can walk in and showcase their talent and skills. You can only provide an opportunity. Grabbing it, it's up to you. Yeah, that's why we counted a few players, those who have capitalized on this opportunity. Somebody like Irfanul Anyazi, who's impressed us all. Amir Jamal is one. Ali Majid Shah, I would definitely put in that list. Oh, what are you doing? What are you thinking? You've given away another 2. It's not a good way to welcome the youngster. Could have been a dot.
Rajil in that cover area. Went straight to him. Just made a mess out of it through the legs. Couldn't really get down in time. That's driven, and that's through. You don't need to chase that one. Brilliant square drive from Zan Abbas. Fantastic. He's the man in form. Well, look at that. Just waited enough. Then those strong wrists coming into play and earning a boundary. After 4, it's 25 for 1. ATF Southern Punjab been asked to bat first. One down, that was the Shan Ashraf, the opener. Wild swing outside off stump made him pay. These two are looking good. Mohammad Shahzad, Zan Abbas with a brilliant innings the other day, 81. Yeah, we were talking about the youngsters who have grabbed the opportunity over here at National T20. As we see Abrar Ahmed coming into ball is 12 wickets, best of 3 for 14. Nice, easy economy too. Yeah, I forgot the name of Saim Ayub. I think he's been the pick of the batters. Brilliant inning. He's been in fantastic touch. Regulation field for Abrar Ahmed. Just packed the offside, but no one throwing the boundary. Got long on, deep mid-wicket. That's a bad ball. According to the field, you're asking for boundaries. Yep, Mohammad Shahzad is in the same list as we were discussing. The youngsters who have impressed us all. He's definitely one to watch out for. Have a look at that. Nice footwork. Just rocketed onto the back foot and placed it beautifully between the two fielders to earn himself a boundary. I'm not sure of this field placement. It's always going to skid along. Again, just trying to create that room, exploit that offside field. Ball is going to skid, and he usually hits that back of length, hard length, where you as a batter can go deep. That's well bowled. Good follow-up delivery. If he wants to keep this field, he needs to bowl much straighter line. Good comeback from Abrar. I just love Sarfaraz behind the stumps. He's full of words. This is field set for him. There's a fielder at deep square leg and long on. Dot to end the 5th over. ATF Southern Punjab, 29 for 1. Yeah, both sides will be happy. 5 overs gone, 29 for 1. आसिफ महमूद का पहला ओवर महंगा रहा। नए फास्ट बॉलर हैं अनवर अली, अब उनकी जगह पर फिर से बॉलिंग करेंगे, जिन्होंने अपने इकलौते ओवर में 3 रन दिए। आज नई गेंद शेयर की अनवर अली ने, क्योंकि सुहेल खान नहीं थे। आसिफ महमूद
जो है उनका डेब्यू कराया है सऊद शकील और गुलाम अली ने सिंध की टीम के लिए। खासा तेज लगे, खासे कदावर भी, लेकिन ज़रा सा दबाव में थे पहले मैच की निस्बत से। उम्मीद करेंगे कि जब फील्ड उनको ज़्यादा खुली मिलेगी तो वो एतमाद से बॉलिंग कर सकेंगे। कटर फेंका और इससे कट कर दिया, गेंद तो आला तरीके से रोका। बाउंड्री लाइन पर उमर बिन यूसुफ ने। सिंध की आउटफील्डिंग बड़ी अच्छी रही है, अच्छे कैचेस उनने पकड़े हैं, रन्स रोके हैं, रन्स बड़ी तेजी के साथ बनाए भी हैं दौड़कर सिंध के बैट्समैनों ने। बिल्कुल, और अंपायर देखना चाह रहे हैं कि चौका हुआ है या नहीं। उमर बिन यूसुफ ने डीप में अच्छी फील्डिंग की है इस टूर्नामेंट में, कैचेस लिए काफ़ी तेज़ हैं। ग्राउंड फील्डिंग के लिए भी उनकी काफ़ी ग्राउंड स्पीड अच्छी है। इस मरतबा भी सफाई से गेंद को रोकने में कामयाब हुए। आसान फैसला होगा ये अंपायर के लिए। बस पावर प्ले में जिशान के आउट होने के बाद सदर्न पंजाब ने रिवायती सी अप्रोच अपनी अपनाई है। इस विकेट पे ये बुरा ख्याल नहीं है, प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। ये अच्छा रन लिया, शर्जील खान पीछे थे, बिल्कुल दायरे के साथ लगे हुए खड़े थे और उसी का फायदा उठा लिया जैन अब्बास ने, जिनका किरदार बड़ा कलीदी है इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप में। अब किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल फेसबुक पर जाइए और वहाँ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। अगले विनर आप भी हो सकते हैं। ऑफसाइड की फील्ड को स्ट्रेंथन किया है। 4-5 फील्डर्स दायरे के अंदर हैं ऑफसाइड पर। वीपर्स हैं वो ऑन साइड पर हैं दोनों ही। अफराज अपने फील्डर्स को तैयार रहने की हिदायत करते हुए, इंपॉर्टेंट 4 गेंदें हैं यहाँ पे। अच्छा पावर प्ले को फिनिश करना चाहेगी सिंध की टीम। सरफराज अहमद इस वाइड गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। ये 2 रन दरअसल 3 रन वाइड के मजमूई तौर पर बनेंगे। तजुर्बात करना चाह रहे हैं शहजाद के खिलाफ अनवर अली, लेकिन अपनी लाइन भुला बैठे थे। एटीएफ सदर्न पंजाब ने कल बहुत ही उम्दा इब्तिदा की थी, आग बाग इब्तिदा थी। जिस तरह की बैटिंग की जैन अब्बास ने, 111 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। ये दोनों स्कोर को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जो ही इनकी जुदाई हुई उसके बाद विकेटें बड़े सस्ते में निमट गई और बाहर निकलकर स्मैश कर दिया। गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही लेकिन गैप में चली गई। तो बड़ा जरूरी चौका था क्योंकि पावर प्ले की अब 3 गेंदें बाकी बची हैं। तो ये वो ओवर होता है जिसमें बैट्समैन जाते हैं आमतौर पर ऑल आउट अटैक पे। अच्छा रीड किया शहजाद ने। अनवर थोड़ा सा ओवर कॉम्पनसेट कर गए, पिछली बॉल लेग स्टंप से बाहर थी। इस मरतबा शहजाद के फुटवर्क ने उन्हें हाथ चलाने का मौका दिया, थोड़ा सा रूम भी दिया अपने आप को। और ऑफसाइड पर कोई स्वीपर नहीं था, सिर्फ इनफील्ड को बीट कर दिया। 3 गेंदें अब प्रेशर में होंगे अनवर अली, क्योंकि 10 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों में। लेग साइड में ही इनके जो दोनों डीप फील्डर हैं, स्क्वायर लेग पर उमर बिन यूसुफ हैं, डीप मिड विकेट पर साद खान है। अच्छा बाउंसर अनवर अली ने ये जवाबी चैलेंज पेश किया, इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे शहजाद। अनवर अली ने सबसे अच्छा बाउंसर्स का इस्तेमाल किया है इस टूर्नामेंट में और इनकी रफ्तार बढ़ी है। कुछ अर्सा पहले इनके टखने की सर्जरी हुई थी, उसके बाद ज़्यादा फिट लग रहे हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हुए नज़र आए हैं और एक बेहतर बॉलर ये साबित हुए हैं रावलपिंडी में अनवर अली। अच्छी कोशिश नहीं थी अबरार की, बॉलर्स को सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पर और ये डॉट बॉल हो सकती थी, लेकिन अबरार चूक गए। देखिए गेंद को ज्यादा पटकते रहे हैं
अनवर अली अबरार को रोकना चाहिए था इस गेम को। इन्होंने नजर की अनक लगाई। अबरार न सिर्फ ये कि सिंगल हुआ बल्कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। तमाम ही फील्ड दोबारा से तरतीब दी अनवर अली ने। उनको अपना लाइन ऑफ अटैक भी चेंज करना पड़ेगा। इस छोटी सी गलती की बज़ाहिर तो 1 रन कीमत अदा की, लेकिन ज़्यादा कीमत भी हो सकती है अगर यहाँ जैन फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए इस आखिरी गेंद का। लेट कट करना चाहते थे, लेकिन ये सीधी थ्रो आकर मीर हमजा की विकेटों पर आ रही। तो क्या पिट गए शहजाद? अच्छी कोशिश की मीर हमजा ने, लेकिन शायद पहुंच गए थे। टीवी अंपायर बताएंगे वीडियो देखने के बाद कि वाकई ऐसा हुआ या नहीं। लगा ऐसे कि शहजाद ने अपना बैट ड्रैग नहीं किया, लेकिन कर गए थे बर वक्त और क्रीज में वापस आ गए। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। आसान फैसला अंपायर के लिए। 6 के बाद 41 पर 1। सोहेब मकसूद आज भी नहीं खेल रहे, लेकिन ये अच्छी खबर है कि कम से कम ये बेंच पर वापस आ गए हैं। और इसके बाद मैचेस मुल्तान में होने हैं, इनके अपने ही शहर में। मुमकिन है कि ये वहाँ दोबारा टीम में वापस आए। ये देखिए जो पहले बैट्समैन थे जीशान, ये शॉर्ट गेंद पर पिट कर रह गए और उसके बाद ये अच्छी बैटिंग देखने में आई। 39 रन की अब तक पार्टनरशिप हुई है, जिसमें जैन अब्बास ने अच्छे स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेले। उनकी देखा देखी शहजाद ने भी बाउंड्रीज लगाई। अंपायर साकिब खान जो कि अगले मरहले का इशारा दे रहे हैं। अच्छी अंपायरिंग की है साकिब खान ने भी। अबे यार वेट नहीं कर सके और अगेंस्ट द टाइड खेलने के लिए चले गए। तारिक, आपने अंपायरिंग की बात की। इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग देखने में आई है। पाकिस्तान में अंपायरिंग का मयार कहना होगा कि इस पूरे खित्ते में शायद सबसे बेहतर है। तो आईसीसी एलीट पैनल पे जो अंपायर शामिल हैं और उनके नीचे जो अंपायर्स ये सेल की निगरानी करते हैं और इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी अंपायरिंग कर रहे हैं, लगता है कि एक अच्छा पूल अंपायर्स का आ गया है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। ये विकेट के सामने थे। जी हाँ, यही ख्याल है साकिब खान का भी। और अपनी विकेट गंवा बैठे शहजाद। गेंद को स्वीप करने के लिए गए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसकी लाइन को मिस किया और साथ साथ लेंथ को भी फ्लैट डिलीवरी आई। यही शक हो सकता था कि क्या लाइन के बाहर तो नहीं टकराई। अच्छा डिसीजन लगा। शहजाद शॉट सिलेक्शन में चूक गए यहाँ पर। अबरार उन्हें डिसीव करने में कामयाब हुए। 15 रन बनाकर आउट हुए शहजाद। एटीएफ सदन पंजाब 42 पे 2। सलमान अली आगा जो हैं ये इन दिनों हम कह सकते हैं कि इन दिनों एक हिसार में रन्स इनको नहीं मिल रहे। क्या उस हिसार को आज तोड़ सकते हैं? इन्होंने पिछले 3 मैचेस में जितने रन्स बनाए हैं उससे ज़्यादा विकेटें ली हैं और उसी वजह से ये टीम की आज भी ज़रूरत है। आज अच्छा ज़रूरत है एटीएफ सदर्न पंजाब को एक डिसेंट इनिंग्स खेलें यहाँ।
खतरनाक जारहाना बॉलिंग कर रहा है ऑफ स्पिन, पता नहीं कौन सी बॉलिंग कर रहा है, क्या हो गया बैट्समैन। सरफराज से आप ये तवक्को रखते हैं? ये शाबाश भाई, यहाँ सरफराज से ये तवक्को रखेंगे कि ये सलमान अली आगा के कानों तक पहुंचते रहेंगे मुसलसल। देखे ये अच्छा शॉट नहीं था, बिल्कुल भी गेंद बिल्कुल फ्लैट आई और वो लेंथ मिली नहीं। आपको चाहिए होती है एक लेंथ स्वीप करने के लिए। लेकिन यहाँ एक जो फिक्र की बात है, मोहम्मद शहजाद ये अभी इसी बरस वेस्ट इंडीज से आए थे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलकर, तो इनका बड़ी क्रिकेट में ये पहला मुकाबला है और शायद ये इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन जी नहीं, अंपायर साकिब खान ने इत्तेफाक किया अबरार की अपील से। गेंद पिछले पैड पर लगी थी और सलमान अली आगा को यहां आउट करार दे दिया गया। सिंध की टीम खेल में पूरी तरह वापस आ गई। जब आप बुरी फॉर्म में चल रहे हो तो 19-20 डिसीजन आपके अगेंस्ट ही जाते हैं। क्या ये 19-20 डिसीजन कहलाएगा? अंपायर साकिब खान के ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने सलमान अली आगा को कहा कि आप आउट हो चुके हैं। बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए एटीएफ सदर्न पंजाब के कप्तान एक मरतबा फिर आउट हुए। इनिंग्स डगमगाती हुई 42 पर 3। टीम के लिए मर्द बहरान का किरदार इन्होंने अदा किया इब्तदाई मैचेस में, लेकिन अबरार बड़ी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादा मोहलत नहीं दे रहे बैट्समैन को। विकेट टू विकेट आज उनने गेंदें कराई हैं, लेकिन क्या ये गेंद स्टंप्स में लग रही थी? ये फ्लैप पर लगी पैड के। सलमान अली आगा का कद काफी लंबा है, बैकफुट पर जरूर हैं, लेकिन अभी भी आप देखें कि मार्जिनल डिसीजन कहा जा सकता है। ऐसा मुमकिन है कि किसी दूसरे दिन ये अंपायर बैट्समैन के हक में फैसला दे देते, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आपकी फॉर्म खराब हो तो कुछ भी आपके हक में नहीं जाता, और सलमान अली आगा के साथ यही कुछ हुआ। रन आउट भी हो रहे हैं और ऐसे फैसले जो कभी आपके हक में भी जा सकते हैं वो आपके खिलाफ चले जाते हैं। पहला ओवर आसिफ महमूद ने इसी एंड से किया था और उम्मीद है कि आप वार्म अप हो गए होंगे। काफी तेज गेंदें करते हुए नजर आए, खासे कदावर हैं, अच्छा हाई आर्म एक्शन लगा है। अभी कुछ देर पहले जब ये बॉलिंग कर रहे थे नेट पर, ये दिलचस्पी का बाइस से देखने वालों की। अच्छा बॉलिंग एक्शन भी है, एक रिदम नजर आता है। हैदराबाद से ताल्लुक है आसिफ महमूद का, जिनका ये पहला T20 मुकाबला है। व्हील कामत हैं और अपनी हाइट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पहला मौका मिला है, आज डेब्यू है इनका, मुतासिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसे उठाकर खेला, लेकिन फील्डर को पीछे खड़ा किया गया है साद खान को। एक्शन आसिफ का स्टिल हेड है और जब पॉइंट ऑफ रिलीज है आप देखिए कि फ्रंट फुट काफी ब्रेस्ड है और बाजू बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि 11 o'clock जो क्लॉक पे पोजीशन होती है वहां से आ रहा है। थोड़ा सीधा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अर्ली डेज है इनके करियर में।
यहाँ तो आपने ये जो फ्रंट फुट रेस्ट की बात की, वही निशानी होती है कि ये तेज बॉलर हैं। आप समझते हैं कि अभी भी ये जो बाएं हाथ का इस्तेमाल है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिस वक्त फॉलो थ्रू से पहले ये गेंद को रिलीज करते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा ज्यादा देर तक वो उसको ऊपर रख सकते हैं, ज्यादा जल्दी ड्रॉप कर देते हैं। चांस नॉट आउट, और उससे ये होगा उनकी पेस में भी इजाफा होगा, एक्शन अच्छा फिनिश करेंगे, रिपीटेबल हो जाएगा उनका एक्शन बहुत ज्यादा, और कंसिस्टेंसी आएगी उनकी लाइन और लेंथ में भी। देखिए छोटे छोटे कदमों से आगाज करते हैं और बाद में यहाँ जब अंपायर के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। और ये उन बॉलर्स में से हैं जो शायद रनअप से वो अपनी रफ्तार जो है वो जनरेट नहीं करते, बल्कि क्रीज को जोर से हिट करते हैं। और इन्हीं के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जो मोहम्मद हसनैन हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ अभी बहुत तेज़ बॉलिंग की, ज़्यादातर गेंदें 150 से ज़्यादा रहीं। हैदराबाद से भी अब तेज़ बॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। एक बार फिर गेंद बल्ले के खासी ऊपरी हिस्से पर लगी, बाउंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आसिफ महमूद। और इसी की कमी थी, एक आउटराइट पेसर दरकार था सिंध की टीम को पिछले मैचेस में, जो आज मौजूद है 46 पर 3। शाबाश 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 शाबाश। 2 विकेटें अबरार ने हासिल की हैं, लेकिन एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए ज्यादा परेशानी खान सलमान अली आगा का एक मरतबा फिर जल्दी आउट होना। सिंध की टीम ने काफी अच्छे से गेम को कंट्रोल किया हुआ है। हारून सिराज इन फॉर्म बैटर हैं, जैन अब्बास ने भी अच्छी फॉर्म हासिल की हुई है। विलियन एंड से बॉलिंग में तब्दीली हुई है, दानिश अजीज को लाया गया है। 20 साल उनकी उम्र है, 18 विकेटें 29 मैचेस में, इकोनॉमी 8.6। अच्छे पार्ट टाइम बॉलर हैं, अपने कप्तान की मदद कर सकते हैं चंद ओवर्स के लिए कभी कभार। ये अच्छा बॉल है, गुड स्टार्ट। यहाँ क्योंकि एक बॉलर जो है उस अपनी बॉलिंग की ताकत पर कदरे समझौता किया हुआ है सिंध ने। इजाफी बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ को इन दिनों खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो जैन अब्बास हैं, अब इनको ये सोच कर खेलना है कि इनको ऑल द वे जाना पड़ेगा, इस इनिंग्स को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। एक तो इसलिए कि ये सेट है, और दूसरा ये इस टीम में इकलौते बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, तो इस तरह के शॉट्स जो हैं ज्यादा आसानी से खेल सकेंगे ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ। जैन अब्बास लेंथ अच्छी पिक कर ली थी, लेकिन एक्सिक्यूट नहीं कर सके। बल्ले के बीचों बीच फील्डर भी काफी फाइन है, स्क्वायर के पीछे था बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर के लिए। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को लगती हुई चली जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर। मीर हमजा को दायरे से निकलते ही अंदाजा हो गया था कि गेंद उनसे तेज सर है। इस हद तक ये दानिस्ता शॉट था। ये टर्न देखकर सदर्न पंजाब को सोचना होगा कि उन्हें जल्दी हिम्मत नहीं हारनी, इस इनिंग्स को डीप लेकर जाएं। जब सिंध बैटिंग करेंगे तो मैच दिन की चौथी इनिंग्स होगी, रन स्कोर करना आसान नहीं होगा। ये अच्छा स्वीप शॉट है, और ये फेवरेट शॉट्स में से एक है शारून के। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, राइट आर्म स्पिनर्स को बारहा उन्होंने इस इलाके में रन्स बनाकर दिखाए हैं, डबल फिगर में पहुंच गए। हाथ देनी होगी, अच्छा टेम्परामेंट है। बॉल पिस्ट्री की बाउंड्री थी, लेकिन अपने गेम प्लान से हटे नहीं।
दिलेरी के साथ जो बॉल उन्हें अपने रीजन में मिला उसका भरपूर फायदा उठाया। और जब स्वीप शॉट खेला तो उसकी खूबी ये थी कि अगला पांव जो है ये स्टंप्स की लाइन के बाहर उन्होंने रखा हुआ था, ताकि अगर वो गेंद को मिस करते हैं ये पैड पर लगे भी तो एलबीडब्ल्यू का अंदेशा ना रहे। अच्छी टेक्निक थी स्वीप शॉट लगाने की। मैं बात कर रहा था कि सिंध की बैटिंग के बारे में भी कि अगर सदर्न पंजाब एक अच्छा टोटल कर लेते हैं। बॉल है ये मेरे पास बॉल अच्छे। एक ही रन बन पाया आखिरी गेंद पर। 9 ओवर्स के बाद 58 पर 3। बात सुनो, आखिर में अनवर से 2 ओवर कराओगे। 9 ओवर्स में 58 पर 3। थोड़ी सी टर्न देखने में मिली पिछले ओवर में, और जो सदर्न पंजाब की टीम अगर यहाँ एक पार्टनरशिप बना ले और एक अच्छा मजमुआ लगाए बोर्ड पर, थोड़ी सी सुस्त विकेट पर, और सिंध की बैटिंग के अपने मसाइल मौजूद हैं ख़ासतौर पे फिनिशिंग में, तो अभी भी सदर्न पंजाब के लिए वापसी का रास्ता खुला हुआ है इस मैच में। सिर्फ अच्छी पार्टनरशिप चाहिए और शारून सिराज ने अच्छा आगाज़ किया अभी तक। यहाँ ये सोचा जा रहा है कि इस वक्त किसको बॉलिंग कराना है। दानिश अजीज के अलावा जो बाकी 4 बॉलर्स हैं रेगुलर बॉलर्स, उन्होंने अपने 2-2 ओवर्स कर लिए हैं। आसिफ महमूद पहले आ गए थे गेंद करने के लिए, लेकिन फिर ये इरादा तर्क कर दिया गया और साइम अयूब को गेंद दी गई है, जो कि इन्होंने इक्का दुक्का विकेटें ली हैं और 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। ये दरअसल इन 3 मैचेस में बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। इससे पहले 2 ही मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की थी। दाएं हाथ से कभी कभार ऑफ स्पिन करते हैं और कभी कभार कुछ गैर रिवायती अंदाज से भी बॉलिंग करते हैं। लवली स्टार्ट साइम, लवली स्टार्ट, शाबाश। ऑफ स्पिन के साथ आगाज किया लेफ्ट हैंडर के खिलाफ। आजकल यही हरबा होता है, ये जितने भी ये पुरस्कार तर्ज के स्पिनर होते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो उसके खिलाफ ऑफ स्पिन करेंगे। अगर दाएं हाथ के बैट्समैन आ गए हैं तो फिर कैरम बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी ग्रिप पे नजर रखनी होगी बैटर्स को मुसलसल, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तब्दीली करते रहते हैं और बॉल को छुपा भी रहे हैं। तो ऐसा लगा कि लेग कटर एक्शन से लेग ब्रेक की, लेकिन कलाई की मदद से नहीं, उंगलियों की मदद से। फ्रंट ऑफ द अच्छा टूर्नामेंट रहा साइम अयूब का। उनकी बैटिंग के एतबार से मुस्तकबिल की जो सिंध की बैटिंग थी उसकी हमने अच्छी खासी झलक देख ली है। शर्जील खान अच्छी कोशिश, सिर्फ एक ही रन यहाँ पर बन सका। एटीएफ सदर्न पंजाब, सवाल ये कि वो कहाँ तक पहुँच सकती है। सिंध के खिलाफ इनको शिकस्त हो गई थी। ये दूसरे मरहले का मैच है, आज से दूसरा राउंड शुरू हो गया इस टूर्नामेंट का। इससे पहले तमाम ही टीमों ने 5-5 मैचेस खेल लिए हैं। सदर्न पंजाब को पहले दिन शिकस्त हो गई थी सिंध के हाथों 147 रन का पीछा करते हुए। वेरी वेल बॉल साइम। तो आज ये सिंध के सामने कितने रन का हदफ इस वक्त रख सकते हैं। काफी वक्त बचा है इस इनिंग्स में। अगर पार्टनरशिप चंद ओवर मजीद चलती है तो अपने टारगेट को असेस कर सकते हैं। इस वक्त तो यकीनन 150 अभी भी उनके जहन में होगा, लेकिन हमने देखा है कि जब पार्टनरशिप लग जाती है तो आप आखिरी 4-5 ओवर लूट सकते हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अयूब। यहाँ से 110-115 रन अभी भी बनाए जा सकते हैं। सरफराज अहमद आज भी दिलो जान से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और हमेशा अपना दिल अपनी आस्तीनों पे रखते हैं। यही खूबी है इस खिलाड़ी की।
नहीं ना और इसे उठाकर खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर जा पड़ी। लाजवाब छक्का, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा शारून का। अंपायर शायद देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई छक्का था नासिर हुसैन सीनियर। क्योंकि गेंद हमारे एंड की तरफ आई थी तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे ये बाउंड्री के बाहर गिरी है। जी हाँ, फ्लैट सिक्स था और शारून ने ओवर का इख्तिताम अच्छे से किया। हाफ वे स्टेज पर एटीएफ सदर्न पंजाब 69 पर 3। छक्का तो है सर, और ये तो सकता है। Zain Abbas doing exactly what he did in the last game, taking the responsibility because he's the senior pro in the side and he's along with Sharoon Siraj, the boy from Saiwal. It's a good partnership building up. पकड़, शाबाश दानिश, टाइट रख, शाबाश शाबाश शाबाश। Zain is the key for ATF Southern Punjab. If they want to get a bigger score, this is a good shot. Outstretched arms, getting underneath it. And this one is as well. You can hear the sound on the bat. It just tells you he's got a good connection. Maximum again. Spin isn't working for Sindh. Yep, left arm spin against a left-hander batter. It's always on the cards. He's going to charge you in that area, that cow corner. And as you said, that sound was beautiful. Saad Khan, the fielder there, couldn't help it. Again, runs here. Good stop. That's the way to slide. That's what I've been looking for. Where you see the fielders trying to dive, jamming their knees into the surface. That's the forward slide you need to give. You should land on your upper thigh. Even now here, his left leg could have gotten stuck. And not only this slide helps you save your knee getting jammed, it also allows you good recovery. You can stand up quickly. That's going for 4. The fielding is pretty ordinary here. Even that 6 which Zain hit, the fielder wasn't in good position in the deep. He could have stopped that. Up 2 towards onside, and this time he's fenced the offside. Oh, better fielding was required. That's really not the fielding for a premier T20 tournament. If you've reached there and you're part of 11, you've earned your place. Got to show that this is the topmost level. He's being smart. He's making them run around. Zain gets another boundary here. The minute it was hit, keeper Sarfaraz knew this can't be chased. Played it late, played it sweet. That is good batting. Very sensible. He's showing the other batters, if you can play conventional shot, proper cricketing shots, you still can bat at a good rate. Zain Abbas cashing in the form he is. Played a wonderful inning in the last game. Now he's in 46 of 30. And he'll just milk it for 1. That is top-class cricket from Zain Abbas. 11 overs gone, 86 for 3. आसिफ आजा आसिफ, जो लिखा हुआ पढ़ा हुआ वही किए जा रहे हो, बस थोड़ा खुद पूरा एक्टिव हो जाओ। हेलमेट भी मंगा लो, फास्ट बॉलर है। थोड़ा खुद तो देखता है इंसान के क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मैं कहाँ फंसाऊंगा बॉल। एक ही जैसे घोड़े की तरह एक ही बॉल किए जा रहा है, पर उसको यहाँ से Sindh also going with these 2 part-timers, Danish Aziz and Saim Ayub.
Well, maybe they were looking to chase down. I'm interested in Sarfaraz. He's giving a peace of mind to Danish Aziz at the moment. That's the first wicket that fell. Zishan Ashraf, and this was Shahzad. And the captain. Salman Ali Agha, the captain, he's struggling big time in this tournament to get going. He's just made his debut for Pakistan national side. Well, it should be easier now playing for Pakistan and then coming to this level, but he's made it difficult for himself. What could be the reason? A bad patch, maybe. That's all I can think of. The captaincy and added pressure. But he's quite keen. Yesterday he was run out. We're looking at halfway stage now in the 12th over 87. They're slightly slow from what we've seen and what this pitch is capable of. They should be around 80, 85 in 10 overs. So it's not far away, but now they need to hurry up. And now this 87 is there because of that big over, the previous one, 17 runs. If they're looking to score in the excess of 170, they'll have to push the agenda now. Choose the bowlers they want to attack. That's good cricket, my young Sharoon. He's realized that it's Zain Abbas who's scoring the bulk of runs, and all he has to do is just play it around, take singles, give the strike to Zain Abbas, and a boundary header there will do for him. Trouble. Sal Shakil, as young captain for Sindh, had a good start, won their two earlier matches, the first two games. Then something just happened. 3 losses consecutive for Sindh. Another question to you. What happened to Sindh? We'll come back to that. Just coming to that point which I wanted to complete, and that is that who will be the bowler they want to target. And that's the important thing, because if they want to get to the big score, you need to pick the bowlers where you can score runs. Asif has been included into the side today. In the air, catch it is the call, and got him. Now that's a big wicket here. Zain is out, and he is the key to success for any opposition if you're playing ATF Southern Punjab. Yeah, he just wanted to go over extra cover. Just could not quite place it. The fielders were inside the circle at mid-off and extra cover. And a good catch for Saad Khan. And what a good debut this young boy is having. That is his first wicket, and he's given away literally nothing into his third over and just 17 runs, and his first wicket. Must be a proud boy. It's 88 for 4. Hassan Khan, another very talented player, former under-19 captain, brilliant fielder. He can bowl left arm spin, can bat also. A very handy cricketer this young lad is. Best of 36. That will go up as he plays more cricket. Talking about Asif Mahmood, what a wonderful debut. Into his third over, just 17 runs, got his first wicket. Can he be the answer to the problems Sindh is having? These 3 consecutive defeats. Maybe that change, coming in place of Sohail Khan, big shoes to fill. Maybe he's the answer.
is a wide. I don't think so. He's not the answer. No, on a serious note, yeah, it could be. It's a fresh change. That's the wicket there for Zain Abbas. The idea was right, but the ball was a little too away from the body. He couldn't control the shot. Found the man in the deep. Yeah, now he realizes. We're just quickly talking about what are the options available to Sarfaraz just after this over. What are the bowlers and what he has to do? Not with Sarfaraz, actually, with Saud Shakil. Sarfaraz is so vocal about things that one feels he's running it. End of the over. No, one more ball to go. So 2 overs for Anwar Ali, 2 overs for Mir Hamza, 2 for Abrar, that's 6, 1 for Asif Mahmood, that's 7. After this, 8 overs remain. So he has to find one part-timer out of Danish Aziz, Saim Ayub. Who does he choose to bowl that 1 over? Damn, and again, we've seen last 5 overs go for a lot of runs. So he needs to get rid of that 1 over somewhere quickly. And this could be the right time when Zain is out. End of the over, 12 gone, 90 for 4. Anwar Ali back, gentlemen. And South, 1 over down. 1 over down, gentlemen. गाइड करना है ये ओवर यही डायलॉग आएगा, यही एक डायलॉग है, जैसा पिता एक डायलॉग है वही डायलॉग आता है बस। Zishan Ashraf scored 1, Shehzad 15, Salman Ali got lazy effort, gone without scoring. 48 runs is a top effort from Zain Abbas. It's 90 for 4 after 12. Still Imran Randhawa, and now we can clearly say after this tournament that Mohammad Ilyas can bat too. So yeah, just as you said, this is the good time, and he's listened to you. He's using that 1 over here, Saim Ayub. All the 2 right-handers, he might have gone with Danish Aziz also. Not after that 17 runs over. And that was Zain Abbas, left-hander. But when 2 right-handers, maybe. This is a good tournament for Sharoon also. He's impressed us all. Yeah, coming back to my question. Where did Sindh go wrong after winning 2 games? What happened to them? 3 losses in 3? They're a good side. They're a very good side. Only one. Something just went wrong. That's the question. Well, they haven't lost games with a big margin. They've been very small margins. So, yeah, it doesn't happen every day. But, yeah, they need to find somebody in the lower middle order. Can't depend on Anwar Ali alone. Danish Aziz is not performing with the bat. And that's an important position there. Not everybody can come at 5 and 6 and just start hitting what Sarwar did in the previous match. Whether you're setting a total or you're chasing, you need that person. You need that person down in the order who can get you 11 or 13 runs and over. Unless we haven't identified, and maybe he bats up in the order and you find someone, but they don't have anyone on the bench. Oh! Yeah, maybe change the numbers, batting order. Demote Saad Khan to number 5 or 6. Promote Danish Aziz to number 3. It might work because it's clearly not working at number 5, 6 for Danish Aziz, definitely. So maybe sometimes it works. You promote him, demote Saad Khan. It might work because that finishing role, that finishing part, that's where the trouble is, in my opinion. At the moment, it's way too easy for these batters. They're just milking this part-time bowler for once. And good sign for Karachi is that they're getting rid of this extra over that they were looking for. There's Danish Aziz. Yes, I'd like him to be promoted today. Just go out there, express yourself, maybe you get your form back. Only one. $13 gone, it's 95 for 4. Always talking. I just sometimes think, don't he get tired? He's wicket keeping, he's focusing. Before that he was captaining and he has to talk a lot too. So a lot of responsibility on Sarfaraz. He's a wonderful boy though. Just excellent team man, involved all the time. Champions Trophy winner and captain.
good batter, middle order. Very good. Gloves for the batter after this over. What has happened here? Gloves for the Where did everyone go? Southern camp, they're struggling clearly. right arm over. But probably everyone got inside. Anwar Ali is back. It's a good time for Sindh. They pulled back things a little because when Zain Abbas was playing, he scored 40 or 48 of 34 deliveries. Runs were coming thick and fast. Now they've pulled back things a little. They can use their part-timers. Medium pacer Anwar Ali. He's bowled well. He's into his third over for 16 runs. 2 youngsters batting. So they can just hurry things up, get this over done quickly. Shout is loud, maybe high. No! Persistent appeal, umpire says yes. Oh. We'll have a second look on that, but out is out. Sarfaraz and the bowler were very, very interested. Oh, that's good. Around the knee roll. He's fallen much after that. The umpire carefully had a look. Maybe he was thinking, is it going down the leg side, missing? Well, Sharun Siraj has to walk. Must be a disappointed boy. Scored 23 runs, got the start. Could not quite capitalize on that. It's 96 for 5. Perfect. Imran Randhawa, the new batsman in, with 96 for 5 on board for ATF Southern Punjab. Arm over the wicket. Pressure has been on ATF Southern Punjab because they've been losing wickets in pairs. There's a pattern to it. So they lost the first wicket at 2. That's the last wicket of Sharun Siraj. Then they lost 2 wickets at the score of 42. Then they lost wicket number 4 and 5 of 88 and 96, a gap of 8 runs. When you lose wickets in pairs, you get 2 new batsmen on the crease, and which is the case right now. Hassan Khan hasn't faced a delivery. Imran Randhawa has faced 1. The momentum just breaks. Yeah, they've certainly pulled back things this inside. At one time, we all thought that they might get to 180, 170 when Zain Abbas and Sharun were playing. They were playing really nicely. That 17 run over to Danish Aziz. But as you just said, couple of wickets going down. But still, I believe Imran Randhawa can go big. So can Ilyas. Sindh should be looking to wrap things up around 150 to 160 because that's their comfort zone. The sort of batting they have, they'll just nudge singles and twos. That will work for them. Just now the umpire gave a piece of his mind to Umair bin Yusuf. One of the over under. If you, the previous ball when Umair bin Yusuf threw the ball to Sarfaraz, he threw it on the bounce. You're just telling him, why are you not throwing the ball directly into his gloves? Why do you need a bounce when he's standing inside the 30-yard circle?
Gotta tell your boys. We all know why they do it. Last ball of the over. He's got a wicket in this one and just 3 runs. Make that 4. That's a good over from Anwar Ali. 14 gone, 99 for 5. What a change. What a revolution. Mohammad Ilyas transforming himself as a batter. He's an excellent fielder. If you take a look at the list of the top catchers, he's got around 2 to 3 very good catches in this tournament. He's bowled well. He's batted beautifully. He's a pure, proper team man. This young lad is always smiling, giving 100%. Such a luxury for the captain to have a guy like him in the side. Always up for challenge. Shabash, shabash. Man of The mystery man, Abrar Ahmed, just given away 5 runs in his 2 overs and got those 2 important wickets for Sindh. Oh, yeah. Big, kya baat He's hai. bowled beautifully today. Just hurried on. The pace is suited of the pitch I talk about. Do andar ek baar. Surya baar. That has been launched into orbit. Got to the pitch very quickly. Slightly looped and slightly fuller in length. It was in the slot. Now that's what these pinch hitters or big hitters look for. That length, the ideal length. And he's just give it all he had and deposited into the stands. Imran Randhawa has shown skill, has shown potential in this tournament that he can be the one who can finish the game for Southern Punjab. Almost won the game yesterday against Northern. He's got a job to do still in this game. He's got 5 overs after this one. The captain would like him to take this side at least till 160 to 170 runs. Nahi yaar, pakad. It's in the air. Yeah. Oh, that's an excellent catch. That is a wonderful catch. Young Saad Khan making sure that he has eyes on the ball and on the skirting too. Had to do a couple of things there and did it beautifully. That is what youngsters bring to your side. So much energy, and one good catch can change the course of the game. This might help. He's such a good bowler. I always enjoyed watching him bowl. That's a great catch, brilliant catch. He's a thinking bowler. He just gets a little worried at times. He has something or the other to share with either his captain or the wicketkeeper. He takes a lot of pride in. The best part is that when the senior Sarfaraz puts his arm around him, so does he. Randhawa goes 105 for 6. It is so difficult to please somebody like Sarfaraz. He's taken 3 wickets and still not happy. Why? Got to appreciate the youngster. 105 for 6. Select him. Free to go. Middle भी दे. भाई असली बैटिंग तो अब आई है इन लोगों की. Ilyas the batter. शाबाश Best of 41, strike rate 117. Oh. I just loved how Sarfaraz, just when Abrar got the wicket, and this is how he got the wicket. Full, the idea was right, but the force, the elevation not quite there, and a wonderful catch. No. But that ball was there to be hit.
Randhawa didn't get hold of it. That was the thing that Sarfaraz was saying. The minute the ball left the bat, Sarfaraz wasn't happy, only to realize that it's going into the hands, and it was a good catch. Expects a lot. Oh, nicely done. That is one bounce and over the ropes. Ilyas has announced himself. End of 15, it's 109 for 6. जैन अब्बास 48 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शारून सिराज अच्छा खेल रहे थे 23 रन पर, लेकिन अंपायर के एक कदरे डिबेटेबल फैसले का वो शिकार हुए। मोहम्मद शहजाद ने 15 रन बनाए। बहुत हालांकि ज्यादा दोनों एंड से जारहाना बैटिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये बुरी पोजीशन नहीं है इस पिच पर एटीएफ सदर्न पंजाब की। और अगर यहाँ हसन खान आखिर तक जाते हैं, इलियास 2 से 3 ओवर्स बैटिंग कर जाते हैं, तो ये अभी भी मुकाबले पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आसिफ की रफ्तार का और उनके चैलेंज का इनको सामना करना होगा, जो कि आसान नहीं है। बड़ी उम्दा बॉलिंग की आज नौजवान आसिफ महमूद ने। उन्हें आज से अपना T20 करियर शुरू किया है। एक बार फिर तेज गेंद करने की कोशिश, लेकिन ऑफलाइन हो गए। अंपायर पर नजर रखना होगी। और ये बैट से टकराई थी नासिर हुसैन के मुताबिक। ये फ्री रन्स हैं इस वक्त, कह सकते हैं आप ये कि सिंध लीग कर रहा है ये कुछ रन्स। लाइन बहुत ख़राब थी, बआसानी इसको गाइड कर दिया और पहुंच से दूर थी बहुत सरफराज के। ये आखिरी 2 उम्मीद है हसन खान और इलियास, अगर एक अच्छा टोटल पोस्ट करना चाहता है एटीएस सदर्न पंजाब। एक बार फिर लाइन ज्यादा बेहतर नहीं थी। अगर इसी लाइन पर इन्होंने बॉडी लाइन बॉलिंग करनी है, तो फिर जो ये फाइन लेग पर फील्डर खड़े हुए हैं, इनको पीछे ये धकेल सकते हैं बाउंड्री लाइन पर। यहाँ अच्छा रोका इससे दानिश अजीज ने, क्योंकि आसिफ महमूद का किरदार इसी तरह का ही रहा है कि आपने दीवार से लगा कर रखना है हरीफ टीम के बैट्समैनों को। वो अग्रेसर साबित हुए हैं इस बॉलिंग अटैक में, काबिल तारीफ स्पेल किया है। इस बार बैकफुट से खेला, ऑफ साइड स्वीपर पहुंच गए मीर हमजा। 2 रन का और इजाफा। सरफराज खुश नहीं है, उनका ख्याल है कि दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग कर रहे हैं। और ये लेंथ भी खतरे से खाली नहीं है। इलियास भी बड़ी हिट मार लेते हैं, हसन खान भी बैकफुट पे रेडी रहते हैं। स्पेस के साथ पुराने गेंद से इस लेंथ पे कराना, हर गेंद कराना रन्स के लिए जाने के मुतरादिफ है। इनको थोड़ी सी ये लाइन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये 4 रन गेंद फिर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। इलियास लेट हो गए थे एक बार फिर शॉर्ट गेंद पर, लेकिन खुशकिस्मती उनके साथ थी और एटीएफ सदर्न पंजाब के भी। देखिए इस मौके पे बल्ला तो इन्होंने घुमाना ही है, आखिर के ओवर्स हैं। इलियास भी बड़ी हिट की तरफ जाएंगे और इस लेंथ का यही मसला है। आपका फाइन लेग का फील्डर अंदर है, थर्ड मैन बहुत वाइड है, जो चीज़ भी कीपर के सर के ऊपर से गई वो चौके की तरफ ही जाएगी। इसलिए ये लेंथ अभी सीख नहीं रहे कि डेथ ओवर्स में कौन सी लेंथ बेहतर हो। यहाँ मिड ऑन को भी आगे लाया जा सकता था और जो फाइन लेग के फील्डर हैं उन्हें पीछे रख सकते थे सऊद, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आसिफ महमूद का ये आज उनका कोटा मुकम्मल हो गया। 30 रन के बस एक शिकार किया, 120 पर 6।
ओवर बॉलिंग चेंज ये क्या लेना है भाई, 5 अंदर है। तो अब यहाँ मीर हमजा 2 ओवर्स करेंगे। अनवर अली से बाकी माता 2 ओवर्स कराए जा सकते हैं। अच्छे डेथ बॉलर नजर आते रहे। मीर हमजा पवेलियन एंड से आ रहे हैं। गेंद बल्ले को छुए बगैर विकेट पर गई। और तो आपसे यहाँ पर मरीना पूछ लेते हैं कि यहाँ सिंध की टीम कितने रन तक खुश रहेगी इस पिच पर, क्योंकि बहुत पिच रिपोर्टिंग की है आपने पिछले दिनों से यहाँ। पिच तो एक टाइम पे आके खेल से निकल ही जाती है। जिस तरह की बैटिंग ट्रैक तो ये है, लेकिन जो हिकमत अमली है वो अच्छी नहीं रही चेजिंग टीम्स की जानिब से। सिंध के पास बैटर्स ऐसे मौजूद हैं जो आराम से ये चेज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 160 तक अगर जाता है ATF सदर्न पंजाब, जिसके लिए मेहनत दरकार है, तो भी सिंध काफ़ी खुश होगा जिस तरह का ये ट्रैक है। और इनके पास बल्लेबाज भी मौजूद हैं, डेप्थ भी मौजूद है, टेक्निकल बैटर्स भी मौजूद हैं जो एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं। साइम बहुत अच्छी फॉर्म में है, सरफराज अहमद है, अनवर अली हैं, सऊद शकील खुद है, शर्जील अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हम देखेंगे कब चलेंगे। या क्योंकि ये जो 120 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, ये इतनी बुरी बैटिंग हुई नहीं है। इस बार क्लियर कर दिया और चोटी के ऊपर से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब। शानदार चौका हसन खान का। फास्ट बॉलर को वो कदमों का इस्तेमाल करना जानते हैं और अच्छा रब्त हुआ गेंद के साथ उनके बल्ले का इस बार। बहुत यूटिलिटी प्लेयर हैं ये, बैट के साथ भी बॉल के साथ। डीप खड़े थे क्रीज में, लेकिन जल्दी पिक की, लेंथ को कदमों का इस्तेमाल किया। और जो एंगल है मीर हमजा का, वो उनसे अवे ही जाना था, जिसकी वजह से ये शॉट लगना आसान हो गई। एंगल के साथ खेला और अब मिड ऑफ को पीछे बाउंड्री पुश किया जा रहा है। या साइम अयूब थर्ड मैन बाउंड्री पर थे, उनको आगे बुला लिया है। खुद मिड ऑफ का इलाका छोड़कर एक्स्ट्रा कवर पर सऊद शकील चले आए। इनको ज्यादा फाइन खेलना चाहते थे, लेकिन स्क्वायर के सामने गई और इस पर भी 2 रन बन गए। विकेट के बिल्कुल दरमियान ये थ्रो फेंकी गई, क्योंकि ज्यादा अच्छा निशाना था नहीं। ये फराज हैं जो मुतबादल खिलाड़ी हैं, 12वें खिलाड़ी सिंध के, फराज अली। मिडिल ऑफ ऊपर आओ। मैं बात कर रहा था कि इतनी बुरी बैटिंग हुई नहीं है ATF सदर्न पंजाब की। 1-2 ऐसे फैसले थे जो किसी भी दूसरे दिन बैट्समैनों के हक में जा सकते थे। पहले से पुल करने का इरादा बना चुके थे, लेकिन कम रफ्तार होने की वजह से गेंद और बल्ले मेल हुआ नहीं। हसन खान, उनकी बैट स्पीड अच्छी है और इस मरहले पर ज़रूरत है ATF सदर्न पंजाब को कि ये चोटें करें मुखालिफ टीम को। यहाँ देख, और ये कर दिखाई बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद साइड स्क्रीन के सामने गई। एक और दिल का शॉट खेला और ये नो बॉल भी थी। ये सोने पर सुहागा ATF सदर्न पंजाब के लिए। ये काफ़ी इशू रहेगा डेथ बॉलिंग का सिंध के साथ। पिछले कुछ मैचेस में अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, इस मर्तबा ये काफ़ी, इस पे क्या बोला जाए, नो बॉल कॉल की गई है, लेकिन फील्ड रिस्ट्रिक्शन की नो बॉल है। जी हाँ, ये जो है ये फील्ड की पाबंदी जो है उसको मलहूज नहीं रखा सिंध की टीम ने।
या 4 फील्डर जो हैं वो दायरे में नहीं थे और इसलिए अंपायर ने फैसला बॉलर के खिलाफ दिया। ये कप्तान को नजर रखनी चाहिए थी, बॉलर से ज्यादा ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है। 17 ओवर्स के बाद 132 पर 6। क्या करें? दायरे से बाहर से आ रहा आ रही है। टाइम। अभी भी मौसम खासा गर्म है। ये वो स्टैंड है जहां छत मौजूद है। रावलपिंडी ने कभी मायूस नहीं किया है जहां तक क्रिकेट देखने का ताल्लुक है। कोई भी फॉर्मेट यहां पर खेला जा रहा हो, लोग दिलचस्पी लेते हैं। ये स्टेडियम शहर से ज्यादा दूर नहीं। अबरार अहमद आ गए हैं गेंद करने को। आज फिर 3 विकेटें उड़ाई। अबरार के लिए सीजन का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था। पहली गेंद पर 2 रन हासिल किए हसन ने। तो ये अच्छी पार्टनरशिप लग रही है जिसमें 29 रन पहले ही बन चुके हैं। सिर्फ 16 गेंदों में दोनों बैट्समैन अब सेट हैं। हसन को ऑल द वे जाना होगा। ये नासिर काजमी है ऑफिशियल स्कोरर शकील अहमद के साथ, ये यहाँ इंचार्ज हैं। और शॉट लाजवाब और गेंद हवा से बातें करती हुई गई स्टैंड में। हसन खान उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो यहाँ कुछ कर दिखाएंगे आज की इस दोपहर। किसी खाते में नहीं ले रहे अबरार अहमद को कि उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, पहले लाइन में निकले और फिर फ्रंट लेग क्लियर की, लेंथ भी उन्हें परफेक्ट मिल गई थी। और ये जहराना शॉट 6 रन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। 35 रन की हो गई है अब 17 गेंदों पे। इन दोनों का बाहर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है अगर 160 से ऊपर जाना चाहते हैं ATF सदर्न पंजाब। पिछले कई बरसों में ऐसी स्ट्राइकिंग देखी नहीं गई जितना हमने पिछले चंद दिन में देखी है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्लीन स्ट्राइकर नजर आ रहे हैं। हसन खान को उसी के नतीजे में एक और चौका मिल जाएगा। ठीक कैच, लेकिन कोई मौका नहीं थर्ड मैन के लिए। गेंद को तेज करने की कोशिश की क्योंकि अभी पिछली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल हुआ था अबरार अहमद के खिलाफ, तो मजबूर हुए फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में गेंद करने पे और उसी में लेंथ मिल गई। किस्मत भी आज साथ दे रही है। शॉट मिडल नहीं हुआ था लेकिन टॉप एज लगा। बल्ला बहुत तेज घुमाया था कट शॉट के लिए। ये लेंथ एक बार फिर मैं कहूंगी नहीं अच्छी, थोड़ा सा तेज गेंद भी कर रहे हैं जिसकी वजह से आसानी से बल्ले पे आ रहा है। अबरार अहमद को थोड़ा रफ्तार में रद्दोबदल करनी पड़ेगी। शायद ये जो इनका ओवर है ये भी इनिंग्स ज्यादा डीप एंड पे कराया जा रहा है क्योंकि स्पिनर के लिए आखिरी ओवर करना ये हमेशा से मुश्किल होता है। अपना आखिरी ओवर T20 क्रिकेट में, और अगर 18वां या 19वां ओवर दे दिया जाए 2 सेट बैट्समैन के सामने तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। 14 रन हासिल करने में कामयाब हुए। एक गेंद अभी बाकी है। बड़ा ओवर आया है ATF सदर्न पंजाब के लिए। हसन खान बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। शाबाश शाबाश। तो अगर हम मजीद इसमें ऐड कर सकें कि अबरार 18वां ओवर कर रहे हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि इनके पास 5वें बॉलर का इशू था, उस वजह से भी एक ओवर जो है कप्तान को इनका रोकना पड़ा। इलियास ने आखिरी गेंद पर एतमाद से दूसरे एंड पर जाना गवारा किया। 18 ओवर्स के बाद 147 पर 6।
दो अच्छे ओवर एटीएफ सदर्न पंजाब के नाम हुए। सिंध के पास बॉलिंग की कमी मौजूद नहीं, 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। ताइम अयूब, दानिश अजीज़ को भी बीच में रोटेट किया। 3 पेसर हैं। आसिम महमूद के आज शामिल हुए हैं प्लेइंग 11 में। रोटेट थोड़ा कह सकते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ओवर इब्रार को देना एक पोस्ट ऑप्शन ज़रूर हो सकती है। अनवर अली और मीर हमजा ये बाकी मांदा 2 ओवर्स करेंगे। कदर खुश हैं आज इस खेमे में। इरफान फाजिल ज़्यादा वक्त इन्होंने परेशानी के आलम में ही गुजारा है। शायद अनवर ज़्यादातर डगआउट में नज़र नहीं आए, जो हेड कोच हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के। अली अब्बास जो हैं इरफान फाजिल इस साथ थे। और ऐसे उठाकर खेला सऊद शकील, गेंद के नीचे आने के लिए कोशिश है और यहाँ ये साद खान थे, लेकिन वो ये छक्का बचा नहीं सके। हालांकि करतब दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन गेंद से दूर एक तो हो रही थी और जाहिर है गेंद उठती हुई जा रही थी। छक्के का इशारा आ गया है के बाद ये फिर बाउंड्री चेक करना चाहते हैं। यकीनी छक्का लग रहा है, क्योंकि जब गेंद उनके हाथ में था वो बाउंड्री के क्रॉस जा चुके थे। उनके कदम जो है वो बाउंड्री रोप के ऊपर थे। अच्छी एफर्ट थी, लेकिन जज नहीं कर पाए कितनी दूर है बाउंड्री से। और जब उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। पाँव उनका लग चुका है बाउंड्री पे और हाथ में उनके गेंद है। डेढ़ 150 रन का हिस्सा पार कर लिया एटीएफ सदरन ने। आज 42 पर 3 विकेटें गंवाने के बाद 105 पर 6 विकेटें गिर गई थी। तेज बॉलिंग मीर हमजा की जानिब से गेंद दूर ले जाने की मीर हमजा कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा अच्छा वार संभलने का ही मौका नहीं था। ये एंगल बहुत सूट करता है। फ्रंट लेग क्लियर करके अरसलान खान, मीर हमजा क्योंकि लेफ्ट आर्मर है, एंगल उनसे दूर जा रहा होता है, इसलिए कुछ भी आउटसाइड ऑफ स्टंप होगा वो उसको बना के उठा के मार लेते हैं। विद इन बॉडी अगर हार्ड लेंथ की जाए, विद इन स्टंप्स और रूम ना दिया जाए, तो वो ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। और इस बार फुल टॉस और ये कैच आउट हो जाएंगे और ड्रॉप कर दिया। उमर बिन यूसुफ, उनसे ऐसी गलती की तवक्को कम की जाती है। खासा वक्त मिल गया था, गेंद हवा में जरूर काफी देर तक जो है डगमगाती रही। आखिर में ये मुश्किल कैच गिरा दिया उमर ने। टाइम बहुत मिल गया था इनको बॉल के नीचे आने के लिए, लेकिन ऐसे ही रीड नहीं कर पाए। अरसलान खान ने बहुत हवा दे दी थी इस गेंद को, पहुंच गए थे लेकिन होल्ड ऑन नहीं कर पाए। बहुत नीचे भी कैच अटेम्प्ट किया इन्होंने, बिल्कुल नजरों से नीचे, आई लाइन से नीचे जब गेंद चला जाता है आपके पास रिकवरी का कोई टाइम नहीं बचता। भी ये महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि 4 चौके और 2 छक्के पहले ही लगा चुके हैं अरसलान खान। और अच्छा शॉट खेला, मिस फील्डिंग और ये दूसरा नहीं बन सकेगा। कुछ सनसनी फैली हुई है सिंध की फील्डिंग में इस वक्त। अच्छी ड्राइव थी। पिछले अगर हिसाब लगाएं 3 ओवर्स में इन्होंने 38 रन दिए हैं, और ये वो रन हो सकते हैं जो जीत और हार का तयन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। अरसलान खान को दाद देनी पड़ेगी, लिहाज अभी फिलहाल दूसरे एंड पे माशबीन ही बने हुए हैं। साद खान को भी नहीं आजमाया लेफ्ट आर्म स्पिन की, वो भी एक ऑप्शन थी मिडिल ओवर्स में। बाउंसर फेंकना चाहते थे और ये 6 रन टॉप एज होकर गेंद बड़ी तेजी से लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चली गई। और मीर हमजा जिनको लेंथ
तब्दील करना ये खासा महंगा पड़ा। ये देखिए बाउंसर फेंका था, थोड़ा सा झुक गए थे, नजरें हट गई थी, लेकिन बैट स्पीड अच्छी है हसन खान की। उनकी निस्फ सेंचुरी भी इसके साथ अब मुकम्मल होने को है। इलियास शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो इसका फायदा उठा सके। एक बार फिर अच्छा स्ट्राइक किया, 2 रन यहां पर भी बन जाने चाहिए क्योंकि फील्डर खासा वाइड थे मिड विकेट पर। उमैर 17 रन्स इस ओवर में हसन और इलियास ने समेट लिए। मीर हमजा के 164 पर 6। उनसठ रन की ये पार्टनरशिप बहुत महंगी साबित हो रही है सिंध को, और अभी इनके पास कोई तोड़ मौजूद नहीं है। अमूमन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ में मीर हमजा, लेकिन आज का दिन बहुत महंगा पड़ रहा है। 40 रन दिए उन्होंने, सिर्फ 1 विकेट हासिल की। एम्पायर शॉर्ट रन चेक करना चाह रहे हैं और ये यकीनी तौर पर शॉर्ट रन ही होगा। यहाँ ये देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये बल्ला जो है ये चला गया था लाइन से आगे और बहुत क्लोज है। और अंपायर ने इसे शॉर्ट रन करार दिया है। हालांकि इसे और गौर से देख सकते थे जो टीवी अंपायर हैं। हो गया अनवर अली का लास्ट ओवर है। तो आखिरी ओवर इस इनिंग्स का 8.5 8 की औसत है। ये दोनों बैट्समैन आइडियली चाहेंगे कि इसे 9 तक पहुंचाया जाए। पहली गेंद पर बाउंड्री आई नहीं। ऐसे नहीं करे 54 रन आए हैं पिछले 4 ओवरों में। डेथ बॉलिंग पे सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है सिंध की। तजर्बाकार बॉलर है, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर हो, अंडर प्रेशर हो, लेकिन एक्सिक्यूशन आज अच्छी नहीं रही। लेंथ का जो चुनाव किया था वो बहुत महंगा साबित हुआ इस पिच पे। आज हमने सुबह के मैच में भी देखा कि शॉर्ट पिच डिलीवरी वो चौके या छक्के की सूरत में ही उसका इख्तिताम हो रहा है। यहाँ सिंध की टीम को यहाँ पर अच्छा फिनिश करना होगा। ये ओवर पकड़ना मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो सदर्न पंजाब का बॉलिंग अटैक है वो उनकी स्ट्रेंथ है। समीन गुल, अली माजिद, फैसल अकरम, हसन, खुद जो सलमान अली आगा हैं, ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे जितने भी रन्स बनेंगे 170, 175, ये इतना आसान हदफ होगा नहीं इस पिच पर। देख सकते हैं 16वां मैच है इस स्क्वायर पर। पिछले 9 दिन से क्रिकेट खेली जा रही है। 3 रन की दूरी पे हसन खान अपनी निस्फ सेंचुरी से। बहुत अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली, इफेक्टिव इनिंग्स। बहुत अच्छे टाइम पे इनका बल्ला बोलना शुरू हुआ। इनटू द पिच। इस बार गेंद की पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन अनवर अली ने दिए हैं और अभी तक उनकी जीत हुई है। बस समीन गुल जो हैं आइडियली ये चाहेंगे कि इनकी बैटिंग ना आए। ये अहमद हैं, ये फास्ट बॉलर, ये पहले सेंट्रल पंजाब के लिए खेलते थे। सदर्न पंजाब का इन्होंने रुख किया। मुमकिन तौर पर कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस में नजर आएंगे। फिर हार्ड लेंथ को हिट किया लेकिन गेंद इलियास की पहुंच से बाहर थी। ये ऑप्शन अच्छी है इनटू द विकेट। पेस बिल्कुल नहीं ऑफर कर रहे अनवर अली, लेकिन ये पिछली गेंद वाइड जरूर जाएगी बाउंस की वजह से। अभी तक अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में। कोशिश ये होगी कि बाउंड्री ना कंसीड करें।
हालांकि 48 रन पर हैं हसन खान, लेकिन इलियास जो है वो हिट आउट करने के लिए ही जाएंगे, ना कि उन्हें स्ट्राइक देने की गरज से बैटिंग करेंगे, क्योंकि ये बड़े शॉट लगाना जानते हैं और ये हम देख सकते हैं उसी का मुजाहरा। गेंद गई 5वें जीने तक। हसन खान के बाद अब इलियास भी महंगे साबित हो रहे हैं सिंध के लिए, और इनको लेंथ कराते हुए बहुत आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि इनका पिछली टांग है वो कोलैप्स कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा शॉर्ट बॉल ना भी हो तो उसको बना ज़रूर लेते हैं। ये देखें पिछली नी जो थी घुटना इन्होंने कोलैप्स किया, जिसकी वजह से जो लेंथ थी वो बहुत अच्छी हाइट उनको मिल गई, और एक बुलंदोबाला छक्का इन्होंने मारा। प्रेडिक्टेबल हो गए थे अपनी लेंथ के जिम्न में। अनवर अली क्या यॉर्कर करेंगे? ऑफ स्टंप की तरफ फिर से लेंथ ऑफर की और इस बार एक ही रन इलियास ले पाए, तो वापस मिल गया है बैटिंग का एंड। हसन खान को निस सेंचुरी का ये मौका है। ATF सदरन पंजाब ने अच्छा स्कोर बना लिया है, पार स्कोर हम कह सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, क्योंकि ऐसा कहते हुए आपको जो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसको भी पेश नज़र रखना होता है। क्या आखिरी गेंद पर ये बाउंड्री लगा सकते हैं हसन खान? अहलियत इनमें बराबर मौजूद है, थर्ड मैन पॉइंट दायरे के अंदर हैं और ये LBW हो जाएंगे, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रद्द कर दिया, लेग बाई देने पर ही इक्तिफा किया। तो इस तरह ये 20 ओवर्स मुकम्मल हो गए और 175 रन्स ATF सदरन पंजाब ने बनाए 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। मोहम्मद इलियास 25 और हसन खान शानदार 48 रन्स बनाकर नाकाबिल शिकस्त वापस आए हैं। ये दोनों की 7वीं विकेट के लिए 70 रन्स की पार्टनरशिप थी, जिसने इस खेमे को खुश कर दिया है। इलियास जब जब मौका मिला है बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। अपनी टीम के बहरान को उन्होंने हर मौके पर कम किया और हसन खान इनकी जो इनिंग्स थी इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। सिर्फ 33 गेंदों में 70 रन की पार्टनरशिप में वो शरीक रहे। जीशान अशरफ आज भी जल्दी आउट हो गए, उन्हें मीर हमजा ने अबरार के हाथों कैच आउट कराया। जैन अब्बास ने एक और उम्दा इनिंग्स खेली 48 रन की, मगर दूसरे एंड पर विकेटें गिरती चली गईं। मोहम्मद शहजाद 15 और सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शारून सिराज वो LBW आउट दिया गया अनवर अली गेंद पर, और आखिर में हसन खान और इलियास ने अपनी टीम को एक मोतबर स्कोर 175 तक पहुंचा दिया। ने आगाज अच्छा किया था, अर्ली ऑन विकेट्स मिली थी। इब्रार अहमद 3 विकेटें लेकर तेरे फिरिस्त रहे। मीर हमजा, अनवर अली और आसिफ महमूद एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन आखिरी 5 ओवरों में 66 रन दिए। यहाँ पे गलती कर गया सिंध, जिसकी वजह से ATF सदरन पंजाब का टोटल यहाँ तक जा पहुंचा। पहली विकेट 2 पर गिरी, दूसरी 42 पर, तीसरी 42 पर, 105 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन इस मौके पर हसन खान की जो पार्टनरशिप थी उसने मैच का नक्शा तब्दील किया। हमारे साथ हैं इस वक्त हसन खान। हसन, बहुत ही आला आपने बैटिंग की, कुछ बताइए अपनी कामयाबी के मुतालिक। जी, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। बाकी पिच अच्छी थी, तो हमारा यही प्लान था। थोड़ी अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई थी, तो यही बात हुई थी कि जितना लंबा लेके जा सकते हैं लेके जाएं और एंड पे फिर हम चार्ज करेंगे। तो कुछ बताइए, इस सीज़न में आपने कैसी तैयारी की है, किस तरह के अहदाफ हैं आपके लिए? जी बिल्कुल, तैयारी तो अच्छी है, पर अल्लाह पाक का करम है, तैयारी बहुत अच्छी करके आया हूँ और रिज़ल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते, पर यह है कि मेहनत की हुई है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो 175 अच्छा स्कोर है, आप समझते हैं आपका बॉलिंग अटैक इसको रोक सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टारगेट हमने सेट कर दिया यहाँ पे, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बॉलर्स हैं और फील्डर्स, पूरी हमारी यही कोशिश है कि जितना आसानी से हम ये मैच जीत सके हम जीतें। बहुत बहुत शुक्रिया हसन खान, हम सब बड़े महसूस हुए आपकी बैटिंग से। थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 ही आई, लेकिन ये बाकी मैचों में भी ओपनिंग बैट्समैन आए थे ATF सदरन पंजाब के। जीशान ने मायूस कुन शॉट खेला और वो थर्ड मैन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। जैन अब्बास ने बैटिंग का महाज जो है वो संभाला हुआ है पिछले 3 मैचेस से,
उनके साथ मौजूद थे मोहम्मद शहजाद। ये पार्टनरशिप 42 तक स्कोर को ले जाने में कामयाब हुई। शहजाद जो है बैकफुट पर अच्छा खेलते हुए नजर आए, फ्रंट फुट पर उन्हें कदरे मुश्किल होती रही और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। अबरार अहमद की बॉलिंग पर एक और विकेट अबरार अहमद को मिली और इस मौके पर उनका शिकार मुखालिफ टीम के कप्तान थे। उसके बाद खेलने के लिए बैट्समैन मैदान में मौजूद थे, उनने बड़े शॉट्स लगाए। जैन अब्बास जो हैं वो क्रीज पर डट कर खेलते रहे क्योंकि एक मौके पर 42 पर 3 विकेटें गिरी हुई थी। स्कोर को आगे बढ़ाते चले गए जैन अब्बास, लेकिन फिर वो कैच आउट हो गए साद खान के हाथों और उसके बाद एलबीडब्ल्यू आउट दिया अंपायर नासिर ने। ये फ्लाइटेड गेंद पर सामने हिट लगाई और कैच आउट हो गए। रंधावा, ये अच्छा कैच था और यहाँ से जो पार्टनरशिप थी 7वीं विकेट की, उसने खेल में वापस लाना शुरू किया सदर्न पंजाब को। कई एजेस जो हैं ये विकेट कीपर के पीछे से गए, कई बार अच्छा फुटवर्क देखने को मिला। मीर हमजा वाड़े हाथों लिया था, 200 ओवर में डबल फिगर में रन आए और आखिरी ओवर अबरार अहमद का भी महंगा रहा क्योंकि बैट्समैन पिल पड़े और बड़ी हुनरवरी से ये शॉट्स खेले गए। यहाँ हुनरवरी से कैच नहीं हो सका और लेग साइड में ऊंचा शॉट खेला गया और यहाँ पर भी कैच गिरा दिया गया। उमर बिन यूसुफ वो दोषी थे। साद खान ने यहाँ पर कोशिश की कि आखिर तक इस इनिंग्स को लेकर जाएं क्योंकि अच्छी बैटिंग की इलियास ने, उनने भी 2 चौके और 2 छक्के लगाए। तो हदफ इस वक्त सिंध के सामने 176 रन का है 8.8 की औसत से। एक वक्फे के बाद देखिएगा सिंध का जवाब।
175, that's the total for Sindh. ATF Southern Punjab, that was a brilliant recovery. 70 partnership just off 33 deliveries between Hassan and Ilyas. And Sindh losing 66 runs in last 5 overs. That's where the dent is. Now, they have to start really well. This is how things unfolded for ATF Southern Punjab. 48 from Zain Abbas, he's been in sublime form. And started off well, but the finish, that was the problem. Ibrar standing out with 3 wickets. 1 each for Mir Hamza, Anwar Ali and Asif Mahmood. It was going well for Sindh till the 15th over. Then the runs started coming in. Ilyas and Hassan Khan had a good partnership. Used the long handle well. Right arm round the wicket. Sharjeel Khan is due. He's got to arrive today for Sindh. If they want to chase this one, he needs to provide them a good start. Whenever he comes out to bat, the off spinners have a big smile. They straight away are put into action, and the captain himself, he feels that he has the opportunity to take wicket number 10 for himself in the tournament. Saim Ayub, on the other hand, is having a good form. That's the captain. 5 for 10 in 3 overs, his best by any captain in Pakistan. This was against Central Punjab this season. Right arm round the wicket. Let's play. And Sindh are off the mark with a single. Got really good batting lineup, Sindh. A lot of players in the middle to be named. Starting out with Saim, who has been exceptional whenever he has opened. Scored 92. He'll look to pierce that gap in the cover. That's his strong area for Saim Ayub. He'll make room. He'll try to... This is the one I'm talking about. It's too full on that occasion. He's not a full-time bowler, Salman. And it's a very different ball game when bowling to Sharjeel, an off-spin, or bowling to Saim. He'll play you with the spin. Yeah, assertive footwork. Just down the track, coming straight in line so that he can manage to open up the offside for himself. And with ease, he cleared that third 30-yard circle. Oh, more runs here. He's got timing on it. There'll be a lot of hard work for the fielder in the deep. Will surely have a second look. He's managed to keep the ball within play. But are his feet touching the rope when he is in contact with the ball? Ranjan Dhawa getting the slide in, and seems like his knee is touching the cushion as he touches the ball. Yes. Seems like a straightforward decision. Both the occasions saw again Salman too full. Nicely worked at using his wrists on the onside. Back-to-back boundaries. That's better. Will definitely be looking for early breakthroughs. Then they know what the target is, they can pan it out. Quicker one. That's not going to work. Boundary again. Half tracker. 13 for no loss. Select him. Samin Gul has been bowling well. We've seen some good swing coming from him. He's got pace. He's got experience, 38 games. The 38th game is this one.
To begin with, he has to cover up for that 13-run over. Ball a good one here. It's coming round the wicket to Sharjeel. Catch it is the call, and it's just past that fielder. He's got a finger to it, which is why the pace is taken off. That was a chance. The big guy, Sharjeel, he'll always go anything slightly on a shorter side. He'll try to pull it. Fielder was placed brilliantly, but just the fingers touching. Couldn't really reach that catch. Had it been taken, it would have been a superb one. Gets away with it, Sharjeel. Tilakram, the one diving on his left. That is his bowling arm. Well, that was hit hard. Just hope that Faisal hasn't damaged any finger, no cuts, because that's his bowling arm, as you said. And can be tough on him. So he's going off just to get his finger treated. In the air, flashing hard. Takes the edge for 4. Runs leaking here. Outside off stump. Again, flashing bad. Always going to treble even the slightest of edges. Trying to hit down the ground. Just a slight touch of swing made it go that way. They'll take runs. They need runs. And they need a decent start, especially in the power. Yeah, that's better. Keep it close to his body. And that angle will help him coming round the wicket. Sameen Gul. A lot of batting to come in the middle overs. Experienced ones. Faraz, Saud Shakil. Got Danish. Needs to strike. Anwar Ali down the order then. ATF Southern Punjab, they need wickets right up on the front to add more pressure. It's a decent target. They wouldn't allow the mistakes that Sindh committed. That's more like it. That angle is again helping him. Sharjeel needs a little bit of room to use the flexibility of his arms to play those shots. This is cramping him up. He's never comfortable. Whenever there's anything coming, nipping back into his body, usually his bottom hand is very strong. The bat comes down at an angle. Seen him a lot of times getting bowled, chopped on, the bat and pad gap. And he likes to dominate. Doesn't like these dot balls against his name. Good comeback from Sameen Gul after that boundary. Half a chance for the catch. Got fingers to it. We'll have to be careful running with Sharjeel. Dot to end the over. 2 overs gone, Sindh 20 without loss.
right arm over the wicket. जान भाई इधर ही रहना थोड़ा ठीक है I would have probably preferred him over the captain himself. He can turn the ball both ways, and he's got ठीक है that zip in his bowling with a new ball. Pretty sure he would have troubled Sharjeel, because that was the idea of Salman Agha coming to bowl. But not the pace. He's got to stay away from giving width to Sharjeel, because since his ball is quick, Sharjeel will find it easy to put it away. Yeah, even with the length, he likes to hang deep in the crease, जगह देखो जगह probably on the crease as well, always preferring to go on back foot, just picking up that length and slamming it into the leg side. That's one concern. No, that won't work. टाइम में रिया बाहर नहीं It's the angle is going away from Sharjeel's bat that makes it easier for him to play it behind the square. And again, I emphasize that this Ali Majid has got pace. Have a look at this. Like a medium pacer bowling to him. I don't know how effective he would be, or how would he feel if he comes round the wicket with that action and dart it in. शाबाश शाजी इजी वेल बोल शाजी शाबाश This was closer to the body, so it didn't really allow Sharjeel to smash it through point. His elbows are folded, so he just cannot free his arms. No, now that's not good. That's not good. That's too short on the legs, and he's too easy for that. Traveled all the way for the maximum. Again, yes, you did mention the pace, but the length, that's way too easy for Sharjeel. Even he pitches up 2 or 3 meters शाबाश शाजी ahead of it, still might be managed by him. Very full. Another one. This is very ordinary bowling from Ali Majid. Seems like he's trying to rush through his over. He's not really thinking what he should be bowling to Sharjeel. That's his zone. The width, as you mentioned, freeing his arms, standing still through the line, no problem there. He'll play this shot all day long if you keep pitching it. घूमेगी माने घूमेगी Must be a single there. But a good over nevertheless. 17 of it, 2 sixes and a boundary. 37 for no loss. स्मीन ही है स्मीन है स्मीन है Got a lot of fans here, young ones. It's good to see. Salman Khan, you will be the next rising star of Pakistan. That's for sure. To see some fan following here. Hot afternoon. They've gathered here to watch their stars in the action. Kingdom Valley National T20. Har wali baat. That's the hashtag. Should be using. Shot. All I can say with the sound of the bat. That was hammered by Sharjeel. The mean goal, that ball traveled miles over the boundary. The length, it's easy pickings for him. He just has to rock back on his back foot. And that bat speed. Fast hands for Sharjeel this time. He's settling in nice and easy. And that is not a good sign for ATF Southern Punjab.
That's better length, just bringing it back into him. As a bowler, you have to keep in mind a lot of things when you're bowling at this guy. Have a look at that, right on the line, the crease. Doesn't really go back on the front foot, he just kind of collapses it. And his hands do the talking. Anything pitching up, he'll go straight down the ground. The margin of error for a bowler is so little against this guy. Off to a good start. 14 balls faced, 32 already. Last game in the Pindi leg. From here, the tournament moves to Multan. A couple of days off, and then from the 10th, it all starts again. First two games, or not first 2 days rather, will be day games just like this. But then from then on, it's the day-night games. Double headers start around 3 o'clock in the afternoon. The first game, second game, 7:30 in the evening. We'll have to see how fortunes change for teams out there. Be a bit warmer than this. Clips the pads, and it'll always be trouble. You see, half the batsman is smashing you with good shots, and then the other half is that you're bowling the wrong line. So you see that you're only into the 4th over, and the opposition is just touching the 50 mark. The idea was right, but execution wasn't. You have to cramp him for room. The mean Gul just couldn't finish that ball within the stumps. This was a stray ball. Already off to a flyer, 49 Sindh without loss in 3.4. That's the kind of start they were hoping for. Oh, he found the gap between these two as well. Runs are coming thick and fast. 50 up for Sindh already. That's the touch from Shajil Khan. He can read the field really well. Not all muscle. Have a look at that. Just waited for it, waited, and then ever so slightly opened that base bat. Managed to pierce that gap. Beautiful shot. Classy little touch. Four gone, 53 for no loss. Safe, very safe. कोई बात नहीं, शाबाश। इधर आ, फास्ट बॉलर आ। तुझे कह रहा मिड विकेट ही आजा, क्या हाथ, आजा, आजा आयो। Are they saying goodbye? Because it's the last day. They have come in numbers today, being the final day of the first leg. They've supported cricket. Some of them are supporting the teams that they like. Mohammad Ilyas will now be in attack. Can he extract something for ATF Southern Punjab? They need a wicket here. Cherji is getting out of hand. He gets that start. He's tough to control then. At the moment, Saim Ayub is on strike. And he won't show mercy either. He's in good form, good touch.
Still in the power play. He's searching to pierce that extra cover gap. He's very strong in that area. Anything outside that fourth stump, or even on fourth stump, he'll go after it, just creating room for himself. They've got no protection deep on the offside. And the angle with Mohammad Ilyas's bowling over the wicket, that helps it. Look at that shot. I was just talking about that. The worry is not just Sharjeel, it's in form Saim Ayub as well for the opposition. His shots don't have brute force. His shots are pure timing. There was a classical shot, just stand and deliver through the line, read the length very early. A great balance at the crease. Good hands and hand-eye coordination. He's a delight to watch. For sure, he's evolved. He's managed to work on his shots and temperament as well. Problems. Oh! Sharjeel did his best to give way to the throw. He ducked so that the throw goes and hits the stumps. Hassan couldn't aim well enough. Have a look at Sharjeel. He is turning back, throw is coming, and he just bends down so that the ball goes. It's a reflex, I know. Had it been a direct hit, I don't think Saim Ayub would be travelling back to the dugout. He had to go straight home because Sharjeel, today, his day. You cannot do this to him. Oh, the protocol now. The ball has touched the visor, the helmet, so we'll have to wait and see. You got a doctor already on field. Cut it onto the glove and then traveling on visor of the helmet. It's always tricky. All is well, just having a laugh around. Ishan. A good delivery. Wanted to glance it. There you go, the on-field doctor. Wearing the gloves. He's a multitasker. Everything is fine. It came off his hand, his glove. That's where the ball actually took the impact. That part took the impact, and then from there it just ricocheted onto the visor. But the rule says if any point in time the ball hits any part of the helmet, the concussion protocol has to be implemented immediately. This is how it happened. You can see the ball hits arm and goes into the visor. And then Dr. Zishan. I'm never going for a checkup to him. It took like 3 seconds to say, "You okay?" Okay, he's all right. You're always welcome, gentlemen. 7 without loss of 28 deliveries. A good start. Hands up. Mohammad Ilyas, he did well with the bat, but can he manage to get a breakthrough for ATF? Because if Sharjeel gets going, which he actually is, and he stays for a longer period of time, he's going to make things difficult for ATF Southern Punjab. And again. Well, these ATF Southern Punjab bowlers are under the pump, for sure. It's a good pitch, and runs will come if you don't bowl accurately.
That's a confirmation. No problems in the concussion. He can see the ball well. And that's the reply to that bouncer. One bounce over the fence. He's not vulnerable to that line or length. He'll take you apart. Not working for ATF right now. That's over. 5 gone, it's 61 for no loss. इससे अच्छी इब्तिदा हो नहीं सकती थी। किसी भी टीम ने अब तक 61 रन 5 ओवर्स के बाद नहीं बनाए हैं इस कंपटीशन में। 12.2 रन्स औसत रही है। शर्जील खान का बोलबाला रहा है, जिन्होंने 17 गेंदें खेली और 3 चौके और 3 छक्के लगाए। और अली माजिद का भी पहला ओवर खासा महंगा रहा था। शर्जील खान ने विकेट हासिल की थी टूर्नामेंट के पहले ही दिन, उनको बोल्ड कर दिया था जब इन्होंने गेंद को फ्लाइट दी और ये किनारा लग गया 4 रन के लिए। शर्जील इसे संभल कर नहीं खेल सके, लेकिन खुशनसीबी ने साथ दिया। स्लिप में कोई फील्डर नहीं था। ये एंगल बनाते हैं माजिद और पेस के साथ। स्लिप में कोई फील्डर मौजूद नहीं। इतने अच्छे आगाज के बाद उसकी तवक्को भी नहीं थी। रन्स का सिलसिला आता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी काफी मैच बाकी है। कल के मैच पे भी अगर नजर डालें, जो शाम का मैच था, ऐसा ही आगाज मिला था सदर्न पंजाब को खुद भी। यहाँ ये क्योंकि स्लिप में फील्डर इसलिए भी नहीं था कि आप ऐसी सूरत हाल बैट्समैन अपने लिए खुद पैदा करता है। ये सिला होता है दरअसल, जो जारहाना बैटिंग हो चुकी होती है उसका ये मुखालिफ टीम बिल्कुल दिफाई हिकमत अमली पे मजबूर हो जाए। उसमें फिर अगर आप ख़राब शॉट भी खेलते हैं तो आपको जो है सज़ा की बजाय रन्स मिल जाते हैं। जब आपका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 200 से ज़्यादा होगा तो फिर शाबाश आपको इस तरह के मौके मिल जाते हैं। अली माजिद भी अब काफी क्रिकेट खेल चुके हैं इस लेवल पे, तो थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए। टीम्स को तवक्को होती है कि उनका क्या गेम प्लान है और उसको काउंटर किया आज अच्छे से सिंध ने। वेल बॉल शाजी, वेल बॉल। साइम अयूब ने टॉप ऑर्डर में बहुत तसलसल से रन बनाए हैं। हम कह सकते हैं कि इस सीजन में ये सिंध की T20 टीम की ये नई दरियाफ्त है। साइम अयूब वो कि PSL में पहले हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन नेशनल T20 कप में इतना अच्छा खेलते हुए हमने सिंध के ओपनर्स को शर्जील के अलावा कम ही देखा। 6 ओवर्स मुकम्मल हुए, सबसे बड़ा स्कोर सिंध ने बना लिया है। जहां तक ताल्लुक है, ये सिंध का सबसे बड़ा स्कोर है इस टूर्नामेंट में 67। जल्दी जाना शाजी, इन्हीं नु जान दे आगा। ठीक है सलमान अली आगा पहले ओवर में इन्होंने भी 13 रन दिए। 9 विकेटें इस टूर्नामेंट में हासिल कर चुके हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਵਰ ਵਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਫਿਰੂਨ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਬਚਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है
और 4 रन्स, इसे स्वीप किया और गेंद फाइनल के बराबर से निकल गई। अच्छा स्ट्रोक खेला साइम, इनके रन्स रुकते नहीं है। स्पिनर के सामने भी सलमान अली आगा गेंद को टर्न करना चाहते थे, लेकिन बहुत बाहर गिरा बैठे लेग स्टंप के। बिल्कुल ये एक फ्री हिट थी, एंगल के साथ भी बॉल बाहर की तरफ ही निकल रही थी, सिर्फ गेंद को रास्ता दिखाया साइम ने। 207 रन पर जा पहुंचे, टूर्नामेंट का टोटल स्कोर उनका, और 208 रन के साथ अब ये टूर्नामेंट में तीसरे हाईएस्ट स्कोरर हैं। दोनों क्योंकि बाएं हाथ के बैटर इस वक्त हैं, इसलिए सलमान अली आगा जो हैं पहला ओवर महंगा होने के बावजूद बॉलिंग जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि विकेट हासिल किए बगैर ये चारा है नहीं। साधारण पंजाब की टीम को कल से सीखना होगा। कल इनकी टीम जो थी 111 तक उसकी कोई विकेट नहीं गिरी थी, बाद में उन्होंने कमबैक किया। ऐसे ही हालात में इसी तरह का ही स्कोर सामने था, तो उम्मीद एक यकीन रखना होगा सलमान अली आगा को, अपने बॉलर्स पर फील्डर्स को भी साथ देना होगा। ये स्टंप माइक से आप सुन रहे होंगे, जीशान अशरफ मुसलसल इसी चीज पर जोर दे रहे हैं कि एक विकेट चाहिए, दरवाजा एक मरतबा खुल जाए। हमने देखा इस टूर्नामेंट में, न सिर्फ कल के मैच में बल्कि बाकी मैचेस में भी, कि रन चेज डिरेल हो जाती है जब ऊपर नीचे विकेटें गिरती हैं। उठाकर खेला, बड़ा अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक, और फील्डर उछले जरूर थे लेकिन गेंद को और आगे जाना था। विद द स्पिन सिर्फ गेंद को टाइम किया। देखिए फुटवर्क लाजवाब शर्जील खान का। फील्डर गेम में थे लेकिन ज्यादा अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था, बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की। आपने देखा शर्जील की टाइमिंग कमाल की थी। इस छक्के के साथ ओवर का इख्तिताम, 7 के बाद 80 पर कोई आउट नहीं। आगा आगा पावर प्ले की हाइलाइट्स, साइम ने अच्छा आगाज किया, शर्जील का आगाज लकी बाउंड्री, और उसके बाद उन्होंने आगा माजिद को आड़े हाथों लिया। नए बॉल से बॉल लेंथ डिलीवरीज को ऑन दी अप खेलने में कामयाब हुए। साइम का ये सिग्नेचर शॉट बनता जा रहा है। फुल शॉट भी अगले कदम पर अच्छा किया, और पावर प्ले बिलाशुबा ये रहा सिंध के नाम। अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अब तक देखने में आई है। ये पावर प्ले में 68 रन सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न के खिलाफ कल बनाए थे, जब जैन अब्बास ने बड़ी जारहाना बैटिंग की थी। सिंध ने 67 रन आज बनाए हैं एटीएफ सदर्न पंजाब के खिलाफ। सिंध ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ भी 60 रन बनाए थे। उसकी बड़ी वजह साइम अयूब की बैटिंग थी। ये भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ये जो 68 रन थे ये भी मैच विनिंग कॉज नहीं बन सके थे सदर्न पंजाब के, और सिंध में ने भी जब 60 रन बनाए थे तब भी वो मैच जीत नहीं सके थे। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मरहला है खेल का। ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 14 तक एक ऐसी रिबिल्डिंग का फेज होता है जहां पे आप अक्सर इनिंग्स को हमने देखा है कि वो अगर विकेटें गिरे तो बिल्कुल ही वो प्लेटफॉर्म लूज कर जाते हैं, लेकिन यहां अगर एक पार्टनरशिप लग जाती है तो आखिर में फिर बड़ा जबरदस्त फिनिश हो सकता है। पहली विकेट मिल गई, या फिर ये बम बॉल था क्योंकि शर्जील टच से मस नहीं हुए अपनी जगह से। अली माजिद जो हैं उन्होंने दावा पेश किया है कैच का, और यहाँ साकिब खान जा रहे हैं अंपायर नासिर से मशवरा करने के लिए, और उसके बाद बड़ी हद तक फैसला जो है
तो देखना होगा कि यहाँ ये सॉफ्ट सिग्नल क्या देते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ ऐसे लगा था जैसे ये बम बॉल हो। नो बॉल तो कतई नहीं है। ये देखना होगा कि ये बम बॉल है या बॉल बल्ले से लगने के बाद सीधी माजिद के हाथों में आई। और ऐसा लगता है कि गेंद ये बल्ले से उठ के आई थी, बल्ले से लगने के बाद ये जमीन पर नहीं लगी, और शायद जो बल्ला है वो जमीन पर लगा है, जिसकी वजह से ये गर्द उड़ी है। बल्ला तो जरूर टकराया ग्राउंड के साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये खासा क्लोज लग रहा है। दूसरा जाविया देखना होगा, ये ज्यादा वाज़े है। यहां से ऐसा लगता है कि गेंद बल्ले की टो पर लगी और उसके बाद उठकर आई है जमीन पर लगे बगैर। लेकिन खासा दिलचस्प फैसला होगा, टीवी अंपायर जो हैं वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ज्यादा करीब से आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ शर्जील खान को जाना पड़ेगा। ये ज्यादा वाजे एंगल है और यहां से लग रहा है कि गेंद पहले बल्ले से टकराई, बल्ला इस दौरान जमीन से भी टकराया, लेकिन जब गेंद बल्ले से टकराई तो उसके बाद सीधी माजिद के हाथों में गई। थर्ड अंपायर मजीद इसको देखना चाह रहे हैं। यहाँ ये आउट करार दिया जाएगा। शर्जील खान के खिलाफ ये हुक्म आने को है। कहा जाता है कि स्पिनर को स्ट्रेट ड्राइव करने से गुरेज करना चाहिए। शर्जील खान ने ये गलती की और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे थे, सिर्फ 1 रन की कमी से अब निस्फ सेंचुरी से महरूम हो गए। 26 गेंदों में 49 रन बनाने के बाद ये चले हैं। कॉटन बोल्ट किया उन्हें अली माजिद ने। 83 पर 1 सिंध। क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? उमैर बिन यूसुफ आए हैं खेलने के लिए। मैच में ये भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सिंध की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें नंबर 3, 4, 5 ज्यादा बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हुए। मैच को डीप ले जाना होगा आज, क्योंकि आज काफी बड़ा टारगेट है। टाइम तो खेलते ही रहे हैं पूरा टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पर लगता है कि उमैर को भी इस इनिंग्स को काफी आगे लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ मजीद विकेटें गिरने से इनका हदफ मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। इस वक्त जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.5 रन के करीब है। उमैर ने सिर्फ 5 मैच खेले इस फॉर्मेट में, 69 रन, 17 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट। ये इनसों से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं। आज उनके पास प्लेटफॉर्म है कि वो इनमें रद्दोबदल करें और अपनी अहलियत का मुजाहरा करें। माजिद ने वही किया जो एटीएफ सदर्न पंजाब को जरूरत थी। ओए वेल बॉल शाजी, वेल बॉल, वेरी वेल बॉल। ये देखिए गेंद को हवा दी। पिछले मैच में भी इन्होंने फ्लाइटेड डिलीवरी पर बोल्ड किया था शर्जील खान को। ज्यादा जोर से हिट करने के लिए नहीं गए। गेंद बल्ले की टो पर लगती हुई आई, एक आसान सा कैच साबित हुआ। लेकिन यहाँ हदफ जो है अभी भी सिंध की ये बहुत ज्यादा पहुंच में है। साइम अयूब अच्छा खेलते हुए नजर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आज इनिंग्स को लंबा लेकर जाएं। अच्छी फॉर्म में है और जब आप फॉर्म में हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभार आप नॉट आउट भी जाएं।
से एतमाद बढ़ता है। 85 पर 1। इधर देखो। माजिद ने 3 ओवर्स में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अभी तक सिर्फ फैसल अकरम को अब बॉलिंग दी गई है और ये इनका स्पेल काफी अहमियत का हामिल होगा इस मैच में। इन पैचेस इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में और आज इनके पास मौका है एक मरतबा फिर इस मिडिल स्टेज में आकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। 4 विकेटें हासिल की हैं अभी तक। एवरेज और इकोनॉमी रेट पर अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 रन की कॉल है। 2 रन हो जाने चाहिए थे क्योंकि गेंद फील्डर से काफी दूर थी। दोनों नौजवान खिलाड़ी हैं। फैसल अकरम की टैलेंट में कोई शुबा नहीं और अभी इस लेवल पे जाहिर है ना तजुर्बेकार हैं। स्किल्स में ज्यादा कंसिस्टेंसी जब लाएंगे तो यकीनन वो बहुत बेहतरीन बॉलर साबित होंगे। सोच के मेरा भाई, सोच के। यहाँ विकेटों के पीछे मुसलसल हौसला अफजाई जारी है ज़ीशान अशरफ की जानिब से। ये दरअसल वो माजे और रावी का लहजा है जिसमें ये बात कर रहे हैं। माजे और रावी की अपनी बड़ी दिलचस्प एक ज़बान है जहाँ साउथ पंजाब शुरू होता है। तो फायदा नहीं उठा सके ज्यादा गेंद को फ्लाइट से खुद को दूर किया साइम ने। इस बार नहायत शानदार शॉट खेला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं लेकिन गेंद बहुत दूर जा पड़ेगी। ये आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का था इस फार एंड बिल्डिंग की जानिब जो साइम अयूब ने लगाया। इनका कद छोटा है लेकिन इनके इरादे बहुत ज्यादा बुलंद हैं। अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए गए लेकिन अच्छा मीट किया। अच्छी बात है कि बिल्कुल क्लैरिटी है इनके माइंड में। जब अटैकिंग शॉट के लिए जाते हैं तो पूरी तरह अपने आप को कमिट करते हैं शॉट में। फुटवर्क ने इस शॉट को मुमकिन बनाया और कनेक्शन तो बहुत ही आला था। सोच के शाबाश। अच्छी होकर गई और इसमें अब कोई शुबा नहीं कि साइम अयूब जो हैं वो उस जीने पे इन्होंने कदम रख दिया है जहां बैट्समैन अपने आप को मनवाना शुरू कर देता है। कुछ वक्त लगता है बॉलर के मुकाबले में बैट्समैन को मैच्योर होने में। इस टूर्नामेंट में ये दूसरे नंबर पर हैं रन्स के एतबार से। दैन अब्बास पहले नंबर पर हैं। लेफ्ट हैंडर हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर की तरह। हाई बाउंसर लगने के बाद फिर इन्होंने दिलेरी दिखाई। अगली गेंद पर चौका लगाया। सिंध 95 एक खिलाड़ी के आउट होने पे। शाही जल्दी जाना। ठीक है। बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गई है सिंध की टीम। यहां तरजील की विकेट 83 रन के स्कोर पर गिरी लेकिन साइब अयूब ने उनके जाते ही जिम्मेदारी संभाली। ये अच्छी हिकमत अमली होती है। अब बॉलिंग क्रीज पर हसन खान आए हैं। ट्रिपल मैचों में 28 विकेटें, एवरेज ज्यादा है 40 रन की। चिप कर दिया इसे गैप में उमैर बिन यूसुफ ने लेकिन रन एक ही मिलेगा। उमैर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, ओपन करते हैं ज्यादा। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए और फिर उस पे आपको एतबार करना चाहिए क्योंकि आप डिफरेंट सिचुएशंस में आते हैं।
लेकिन आप अगर अपना मेथड आसान खान बरकरार रखें और उसी पर जाएं तो फिर आपकी कामयाबी का इम्कान ज्यादा होता है। कैच मानो ओह, लगता है कि ये कैच था। बॉल कैरी किया है कवर की फील्डर तक। दोबारा रिप्ले में जरूर देखेंगे, लेकिन पहले इंप्रेशन पे यही लगा कि शायद ये एक ड्रॉप चांस था। इमरान रंधावा थे फील्डर, देखिए गेंद को फिर फ्लाइट दी, ये विकेट खरीदना चाहते हैं। गेंद पहुंच गई थी इनके दोनों हाथों तक। अच्छी बॉलिंग का तकरीबन सिला मिल चला था फैसल अकरम को। इस तरह की बैटिंग विकेट पर आप ऐसी गलतियों के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। फील्ड में हाई स्कोरिंग मैच है, अगर विकेटें नहीं लेंगे इनके बॉलर्स फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए 5 विकेटें बल्कि 6 विकेटें 105 पर गिरने के बाद भी ATF सदर्न पंजाब ने अच्छा खासा स्कोर बना लिया। लेकिन यहाँ 63 गेंदों में 77 रन के बगैर किसी मुश्किल के बनने चाहिए। सिंध की बैटिंग खासी लंबी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बहुत बड़ा स्कोर सरफराज के अलावा कोई नहीं बना सका। लेकिन ये सारे आउट ऑफ फॉर्म, इनमें से कोई भी नहीं लगा। आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं, लेकिन जिस मेथड की बात कर रहे थे, जब नए आते हैं क्रीज पर तो ऐसा लगता है एक हलचल सी मच जाती है। वो चीज नहीं करनी होगी। उमैर भी जब से आए हैं, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में और उनकी जो स्ट्रोक प्ले है उसमें कोई श्योरिटी उस तरह की नहीं है। एक झिझक सी है और उसी झिझक की वजह से ही पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो पाती और विकेट पे विकेट गिरती चली जाती है। वो जो है रन चेस के लिए अच्छा इशारा नहीं होती। इस नाम में 100 रन भी मुकम्मल हो गए थे सिंध की इनिंग्स के। आपने देखा उमैर बिन यूसुफ बॉल करने से पहले ही आगे आ गए थे, लेकिन इस मर्तबा रन नहीं मिलेगा। 10 ओवर्स का इख्तिताम। सिंध की टीम 101 पर 1 खिलाड़ी आउट। थोड़ा सा चलो माना इजी दो शाबाश। 101 halfway through. That's the best I've seen from Sindh in a chase in this season. This should surely cross the numbers that are left, 74. If they keep going like this, just one down. If they don't do so, they'll only have themselves to blame. They're still attacking. That's the good thing to do. Even if you're in a comfortable position in a match, why wait till the last moment? If there's something to be hit, go ahead with it. Nice use of the feed. Umair bin Yusuf struggling to find some form, and this is a good opportunity. He's got the license. They're in a safe position. He can play his strokes. He can express himself from here on, because they need 68 more runs of 58 deliveries. They're in a very comfortable position at the moment. Well bowled, शाबाश। Oh, he got away with that, honestly. It was just borderline, wasn't it? You got to admire the courage and talent and skill of Saim Ayub. He's really been impressive throughout the tournament, very consistent, and he scored runs at a very good run rate. Just 29 deliveries for 44 runs. Slipped out of his hands. He's lucky that wasn't put away for a boundary. Sometimes those loopy deliveries just go out of your eye line. They're difficult to put away.
Just one wicket for Southern Punjab in this inning so far. Courtesy Ali Majid Shah. आ जाओ 11 gone. It's 111 for 1. Really like to see the guy in middle, Zishan Zamir. He's not 100% fit. Maybe in the Multan leg we might see him in action. Very talented, very fast. Upcoming fast bowler alongside Sohail Khan, rested for this game. इली इधर उधर Faraz also there in the side, left hand batter. आगा इधर Hassan Khan now शाबाश आना into his second over. Can he turn things around for Southern Punjab like he did with the bat? इजी वन है It's way too easy at the moment. They're doing it in singles. They should do it from here on. With 9 wickets in hand. इली They should continue the way they're doing it. They've got themselves in a position where they don't need to worry much. 7.3 is the required, so no wickets needed. Unless they want to finish it early, which they should. It's an edge and it's working for them. Everything's going their way. It wasn't intended to be played in that region, but gets a boundary. Everything working for Sindh and young Saim Ayub. Fortune always favors the brave, and he is a brave young lad. He's not scared, always uses feet nicely, gave himself room. Thick outside edge, earned him a boundary. आ भी बड़ी फैसल थोड़ा बाहर रहा फैसल तनु के थोड़ा बाहर रहा शाबाश आन well ball That's his 50. He's got a previous score in 90s. This is a well-deserved 50 in the chase. And his form continues. 33 deliveries for that 50 for Saim Ayub. 151 strike rate, 6 and 7 boundaries. He's looked apart in this Sindh batting unit. Strike rate, it's very impressive. 151 for a young lad. Just amazing to see. He's one of those youngsters that really stood up for his team. 12 overs gone, 118 for 1 Sindh. मेरा हेलमेट कहाँ है मेरा Okay, whenever you get the time, just run to the center. I'll enjoy those couple of sips of chilled water. Whenever Southern Punjab are in trouble, they turn to Mohammad Ilyas. That's the case here also. And let's have a look at what Saim Ayub did in this inning. Started off beautifully. He's got a big heart, this young lad. He's not shy of going over the top of the fielders. Plays spin very well and equally plays fast bowling. He's got lots of shots in his armory. That one, excellent shot. A very well deserved, an excellent inning. Fantastic. Well done, young boy. Sindh will have to keep an eye on that net run rate. It might come handy because Southern Punjab, Sindh, they're catching up to Balochistan and KP, or the table toppers.
since it's not a big ask, probably could have a mid-wicket here. Plug those singles. Not to save the singles, but for them to then try something different. Now it's a left-hander on strike. So again, you see the spread out field on the onside. Nothing in front of the square, inside the ring. I know it's regulation, but then they do require only 7.2 runs and over. So pushing it around, or maybe use soft hands and get a couple here. Deep square leg, deep mid-wicket, long on, all kissing the rope. And then this happens. This is bad bowling, and it has to be punished, and it has been. That's quality from this young lad, Saim Ayub. He impresses with every delivery he faces. Slower bouncer into the pitch. Judged it beautifully and placed it. Look at that, it has just gone away over the top of those ropes for a 6. What a talent. The body language, it's just gone down from Southern Punjab. They're demoralized, and this is what happens when somebody like Sharjeel Khan plays an inning up the order. Catcher is the call, should take it, it's important. Yes, it is. Are they looking for a height on the no ball? No, they aren't. So you never know. Can they turn the tables from here? It's too far-fetched, yes, maybe. But they wanted to break this partnership they have. It's that man again, Ilyas for Southern Punjab. They need runs, they go to Ilyas. They need catches, they go to him. They need wickets, they go to Ilyas. And he's never disappointed them. He's always delivered. They're checking for the no ball though. No problems there. The height maybe. Saim Ayub would be hoping that he might get away with that. But with naked eyes, it didn't look that high. That's it again, let's have a look. Yeah, that's all right. Shouldn't be a problem here. Should get going. Yeah, it's fine. It's dipping on him. It should be out. It's just hit him high on the bat. Okay, that's it. Given out. 56 of 35 for Saim Ayub. 125 for 2. Balls left. Sajid, balls left 3. The captain, Saud Shakil, 466 runs, 122 is the strike rate, best of 54. Oh, there's a chance. No chance. Non-striker. They need a direct throw and they've given extra runs. And guess what? It's 4 of them. So in total, they've got 5 runs off this delivery, which should only be 1. And they've given away extra 4 runs. Sharoon Siraj there. He had to go. He had to throw. There is no doubts about that. They are looking for wickets. There was an opportunity. So you cannot blame this young lad. It's just pure bad luck. There was not good backing up. Look at that. Oh, lazy effort. Lazy effort. Yeah, center. Yeah, we're talking about this net run rate. And now the body language. Just better now after that wicket.
earlier when Shajil Khan was going. He scored 49 of 26 deliveries, 4 boundaries and 4 sixes. The way he plays, he just takes the game away from the opponents in the first 6 overs. And that really demoralizes them. This is what has happened here with Southern Punjab. As the wickets had that odd height, yeah, he just tried to play it down to square leg, probably square behind the square, but he ended up playing it straight. Yeah, speaking of 80 of Southern Punjab, we saw yesterday how they messed the chase up. They were around 97 for nothing, and over a span of 25 deliveries, they lost 4 wickets. Sindh don't want to repeat that. Yeah, it's in the air. It's going to go over Salman Agha and might just go to the boundary. That's over. 13 gone, 134 for 2. Then Torret Camp going out for 1. And not quite timing it well, Saul Shakil, but still will get it anyways. 4 runs to get off the mark. Quick change. 6 bowlers used. Just wickets for Ali Majid and Mohammad Ilyas. I still believe there's a lot of inexperience in this bowling lineup. They need an extra seamer, an experienced seamer in their side, because they're just relying on Samin Gul and Mohammad Ilyas as their pacer. And we haven't seen Randhawa today bowl. Is there another seamer? So probably, in my opinion, they're short of 1 seamer in their side. Maybe in the Multan leg we might see a change, because with this bowling lineup, with inexperience, they're going to struggle against quality sides. Sindh now just 42 runs away, or 42 deliveries. It's all easy. Just run a ball now. खुद ही पकड़ी Yep, that's not quite timing it. शाबाश आना But was lucky that it just went over the head of Agha Salman. एक है They're happy doing it in singles inside. But the point you made, that net run rate, they must have that in mind. जल्दी जाना यार They must look to finish ASAP. माना भाई इतने क्या जाना जे दोबारा फिर ओए बोलिए साना Will take a lot of hard work for 80 of Southern Punjab to create that gap now. 41 of 39. How many dots can one ball to create that pressure? And that can come with wickets. They need wickets here. जी आप जाओ आगे ना दे दो Yeah, that's the worry, that's the concern for Southern Punjab. They don't have enough attacking options. They've got X Factor in form of Ali Majid Shah and Faisal Akram. Hassan Khan is an orthodox left-arm spinner. Oh, misfield. It's a rare sight, misfield from Ilyas. Yeah, there are talented, that's what I was talking about, Southern bowling lineup. There are talented bowlers in their side, but pace is missing. एक है गुड ओवर सान It's always good to have pace in your time. You can, in your team, you can always turn to them, and they will do something. These pacers, 14 overs gone, 138 for 2. हाँ जी लेफ्टी या पीछे जाओगे लास्ट बॉल पे क्या हुआ था मैं लास्ट बॉल पे क्या सिंगल हुआ था
Just when we are about to finish this Rawalpindi leg, there's a good crowd coming in. There are people that are scattered though, but good in numbers. Ali Majid Shah, they're looking for wickets. शाजी वेल बॉल यार शाजी शाबाश Yesterday was Zain Abbas, today it was Saim Ayub, giving them a good start. And you get a good start in a chase especially, it helps you. It works in your favor. It eases out things and matters for the batsman to come. And he has been scoring consistently, शाजी just like Zain Abbas. Picked up and 4. शाजी It's not what the captain is looking from Ali Majid Shah. Down towards leg side, easy pickings. There's a fielder inside the circle. Just lofted it over his head. Easy pickings for Umair bin Yusuf. It's all too easy for Sindh at the moment. 33 runs of 34. Shouldn't be a problem. आजा It's a good opportunity for these two also. They're short of runs in this series so far, this tournament. Saud Shakil, the captain, they can spend some time on the crease. Same is the case with Umair bin Yusuf, been struggling to get some runs. But they can use these overs to stay on crease, get used to it. There's an appeal. No, that's hit him outside the off stump. Don't do that. Zishan scared me. What is he asking for? I thought something bit him or something. That's way outside the off stump. I know this is an appeal of a different kind, but that's on another set of stumps. Even bowler was forced to just raise his hand. They're desperate to get a wicket. That's out of sheer desperation. That appeal was from Zishan Ashraf. You were in such a good mood. You're just not happy anymore. He scared you. No, he just went in a different way. Because I was looking at the ball and the batsman. I said, no, he's not asking for a wicket, surely. Back for 2, good running there. Another good over in the context of the game. 9 of it. 147 for 2. हाँ ठीक है क्यों हाँ गुड वो दोनों बाहर सी बहुत ज़्यादा क्लीन कर लिया करो ना और मैं समझे गल सुनो क्यों कह रहे बोला लगा पॉइंट आप पॉइंट पीछे जा पीछे ऊपर जबरदस्त रन चेज सिंध की टीम की जानिब से। और इस रन चेज में की है कि जब आपके ओपनर्स और टॉप 3 स्टार्ट्स लेते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं उस अच्छे स्टार्ट को और पार्टनरशिप एक के बाद एक बनती चली जाती है। ज़्यादा विकेटें भी ऊपर नीचे नहीं गिरती। पहली पार्टनरशिप 83 की थी, दूसरे 42 रन की और उसके बाद भी मजीद कोई नुकसान नहीं होने दिया इन दोनों ने। आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 5.8 रन की औसत दरकार है सिंध की टीम को। 8 विकेटें बाकी हैं। यहाँ इसीलिए जो सऊद और उमैर हैं ये अपनी तर्ज की भी क्रिकेट खेलकर सिंध की टीम वो ये 2 पॉइंट्स दिला सकते हैं, क्योंकि आप ख़राब गेंदों का यहाँ इंतज़ार भी कर सकते हैं और आपको शॉट मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। यही हुआ है इन दोनों के साथ, ख़ास तौर पर सऊद के साथ रन्स बनाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन हवा में शॉट खेलने कोशिश में आउट होते रहे। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ 30 गज के फासले पर है और पॉइंट की फील्डर भी, लेकिन लेग साइड में खेल दिया स्क्वायर के सामने इलियास जाकर इस
इनको रोकने में कामयाब हुए और लेकिन तारिक यहाँ देखना ये होगा कि में बहुत करीब करीब हैं एक दूसरे से। यहाँ सिंध के पास एक मौका है, क्या वो इन 28 रन को जल्दी से हासिल करके अपना नेट रन रेट भी बेहतर कर सकते हैं। विकेटें 8 बाकी हैं। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है। ऑफ साइड पर दायरे में 3 फील्डर और 1 ऑन साइड पर उमैर बिन यूसुफ के लिए। ऐसा लगता है सिंध की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो हर खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपने रोल को समझते हुए जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। यहाँ ओपनर्स इनके दोनों ऐसे हैं जो कि ऐसे बड़े प्रेशर लगते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ रन बनाते हैं। पहले पावर प्ले में, फिर मिडिल ऑर्डर में। ऐसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं। सऊद, उमैर जो स्कोर बोर्ड को मुतहरिक रख सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। साद खान भी घोके यहाँ डेथ ओवर्स में वैसी हिटिंग सिंध की तरफ से अभी तक देखने में नहीं आई जिसकी तवक्को थी, लेकिन डेथ बैटिंग के भी या डेथ ओवर्स के लिए भी इन्होंने बैट्समैन मुंतखब किए हुए हैं। तो तवाज़ुन अच्छा है इस टीम का और आज हुक्मरानी रही है सिंध की। इस इनिंग्स के दौरान 150 रन मुकम्मल हुए और सिंध के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं साइम अयूब, यहाँ उनकी भी हुक्मरानी रही है। सिर्फ 4 रन वो पीछे हैं जैन अब्बास से जो टॉप स्कोरर हैं। 241 रन जैन अब्बास ने बनाए। तैयब ताहिर जो सेंट्रल पंजाब के लिए खेल रहे हैं उनने 214 रन बनाए हुए हैं। शान मसूद आज जल्दी आउट हो गए थे। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में आकर शान मसूद। लेकिन साइम अयूब के लिए ये टर्निंग पॉइंट है उनके करियर का। ये टूर्नामेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया भी खासी खुश होगी। नदीम उमर हूँ या नबील हाशमी हूँ जिनने बहुत मेहनत की है इन पर, वो इसलिए भी ज़्यादा खुश होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले के मोहम्मद नवाज अब एक वर्ल्ड क्लास मैच विनर के रूप में सामने आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। जी हाँ बिल्कुल, साइम अयूब की प्रोग्रेस के साथ साथ नवाज की परफॉर्मेंस पर भी काफ़ी खुश होंगे क्योंकि नवाज को इन दिनों हाथों हाथ लिया जा रहा है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, बैट बॉल और फील्ड में भी कंप्लीट पैकेज बनकर सामने आए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो उनकी खिदमात काफ़ी अरसे से काफ़ी नुमायां थी, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेप अप था उसमें जो कंसिस्टेंसी पिछले 6 महीने में आई है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और रैंप शॉट खेलने के लिए गए लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके। ये देखिए बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगे ये शॉट खेलते हुए क्योंकि रिवायती तर्ज के बैट्समैन हैं, टाइमर हैं उमैर बिन यूसुफ। 16 के बाद 152 पर 2। थैंक यू सर। माने चेंज करिए नल भाकर ऊपर रही बॉल चेक माने पीछे लगा पीछे रन बॉल यहाँ पे जरूरत है सिंध की 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए। टूर्नामेंट के पहले 2 मैच जीते थे, फिर 3 शिकस्तें सिंध की टीम को हुई, लेकिन आज नए प्लान के साथ नए हौसले के साथ आए। ये टॉप स्कोरर जैन अब्बास हैं 241 रन के साथ। यहाँ ये जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इनको जो है ये बॉल टू बॉल खेलना चाहिए या फिर अपनी जो नेट रन रेट है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि सिंध की टीम जो है कुछ मैचेस में उनको हार का भी सामना है और फाइनल 4 में अगर अपनी जगह को यकीनी बनाना है नेट रन रेट मुमकिन है कि आखिर में उसकी भी गिनती हो। बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। मैच बिल्कुल आपके हाथ में है
यहाँ पे बॉल टू बॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्रेस करें अपने आप को और अपने हरीफों को पीछे छोड़ दें, न सिर्फ पॉइंट्स में बल्कि नेट रन रेट में भी। सिंध की टीम इन टूर्नामेंट्स में हमेशा मिड टेबल रहती है प्रिलिमिनरी राउंड्स में। लेट लंच यहाँ रावलपिंडी में इस स्टेडियम के इर्द गिर्द भी खाने पीने की बहुत सी आपको ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं। ये फूड स्ट्रीट ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे ये साहब बैठे हुए हैं। शाम के वक्त खासी रौनक वहाँ लगी रहती है। ये रैंप शॉट खेला ऐसा सऊद शकील ने, 1 रन का, और इजाफा बॉलिंग ज़्यादा कारगर रही नहीं। जो सदर्न पंजाब की पिछली कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह थी, आज बॉलर्स जो हैं वो इतने असरदार रहे नहीं इस पिच पर, जो कि बैटिंग करने के लिए खासी सहल है। सलमान अली आगा सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं सदर्न पंजाब के लिए। ये पॉइंट टेबल आप देखिए, सिंध की पोजीशन चौथी है, लेकिन आप देखें कि तमाम ही टीमों के दरमियान सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 2-2 पॉइंट्स का ही फ़र्क है, और 4 पॉइंट्स के फ़र्क से पांचों टीमों का की डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट टेबल पर। ये शॉट हवा में खेला 1 और रन के लिए। यहाँ इसलिए ज़रूरी है, सिंध को पॉइंट्स भी चाहिए, सिंध को अपनी नेट रन रेट भी बेहतर रखनी है ताकि आगे मुल्तान पहुंचकर ये किसी परेशानी या उलझन में मुब्तला ना हो जाए। आज से ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है, तमाम टीमों ने 5-5 मैचेस पहले ही खेल लिए हैं। तो ये दूसरे मरहले का पहला मैच सिंध और सदर्न के दरमियान जारी है। ज़्यादा नेचुरल लगते नहीं हैं जब बड़ी शॉट की कोशिश करते हैं सऊद। रावलपिंडी में खानों का खासा शौक और ज़ौक पाया जाता है। यहाँ मुख्तलिफ आपको ऐसे मकामात मिलते हैं जहाँ लोग सरे शाम ही दिन ढलने के बाद पहुंच जाते हैं, और सुबह नाश्ते का भी एहतमाम खासा पुरतकल्लुफ किया जाता है। लाहौर से मिलता जुलता नाश्ता, मुर्ग चने, रोगनी नान, लस्सी, अंदरून शहर उर्दू बाजार की मशहूर लस्सी। ये शानदार शॉट, 4 रन्स। इस बार थोड़ी सी जगह बनाई और मिड ऑफ के ऊपर से वार कर दिया। उमर बिन यूसुफ आज बड़ी आला बैटिंग कर रहे हैं। 139 उनका स्ट्राइक रेट है। दूसरा चौका लगाया और उसी पर ओवर भी खत्म किया, 17वां, 161 पे 2। भाई बॉल देख लीजिएगा। आ गया आप पीछे थोड़ा बाहर, बाहर से जानी, एक पॉइंट आएगा। तो इस तरह पिंडी का जो मरहला है अब तमाम होने के बिल्कुल करीब आ गया है। 15 रन सिंध को दरकार हैं, और इसके बाद जो एक्शन है ये मुल्तान शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, जरा सा दूर रहे ताकि हाथ पूरी तरह खुल सकें। थोड़ा झुक जाते हैं जब ये सामने भी ऊंचा शॉट खेलने के लिए जाते हैं उमर बिन यूसुफ। नहीं है, वो क्लैप्स कर जाते हैं, इसलिए उनका वेट पूरा शॉट में आता नहीं है। यहाँ बॉल जरा फंस के आएगा तो वो हवा में खेल देंगे, इस चीज को देखना होगा उन्हें। तो शाह जी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सदर्न पंजाब की टीम है इनको क्या बेहतरी लाना होगी, क्योंकि ये अब अपने होम ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। मुल्तान की पिचेस मुख्तलिफ होंगी रावलपिंडी से, वहाँ
शायद इतना बाउंस नहीं होगा, कई गेंदें रुक कर आएंगी। किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा कि कप्तान का एतमाद में होना जरूरी है। सलमान अली आगा की फॉर्म बहुत ही परेशान कुन होगी। कि अब इस तरह आउट ऑफ फॉर्म उन्हें नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें ज्यादा टाइम विकेट पे गुजारा नहीं है। जब आज मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि ट्रेनिंग में बॉल उनका अच्छा लग रहा है, बैट में सिर्फ एक इनिंग्स की जरूरत है उन्हें। और कप्तान के एतमाद में आते ही हमने अक्सर देखा है कि टीमों की किस्मत जो है वो बदल जाती है, क्योंकि पूरा जो कैंप है वो लिफ्ट हो जाता है और कप्तान उसी कॉन्फिडेंस से अपनी फील्डिंग इनिंग्स में भी अपना किरदार अदा करते हैं। उनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा प्रोएक्टिव और पॉजिटिव हो जाती है। और इनकी ख्वाहिश होगी कि सुहेब जो हैं वो भी फिट हो जाएं। देखिए मुल्तान में ही 19 सितंबर को फाइनल मैच होगा किंगडम वैली नेशनल T20 कप का। सिंध की टीम ने इस टूर्नामेंट नया सिस्टम आने के बाद कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है और इस बार आउटसाइड एज पर बाउंड्री मिल गई। विकेट कीपर रॉन्ग फुटेड हो गए थे, गेंद उनसे दूर हो गई क्योंकि बॉलर फॉलो कर रहे थे, जरा सा रॉन्ग फुटेड थे जीशान, इससे आखिर में मौका नहीं मिल सका। जीशान काफी फ्लैट फुटेड हैं, वैसे भी ज्यादा फुटवर्क नहीं है, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं था। एंगल को कवर करने जा रहे थे। महर बिन यूसुफ ने ऑफसाइड के ऊपर से खेलने की कोशिश की लेकिन बाहर ही किनारा लगा। महर की ये इनिंग्स भी सिंध के लिए बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि उस पर पूरा ट्रस्ट किया हुआ है सिंध की मैनेजमेंट ने और उस एतमाद को जो है आज उस पर पूरा उतरे। जीशान जो हैं इनको भी जाहिर है कि इनको भी बेहतर करना होगा। तो कभी कभी जो है वो कहते हैं कि कभी कभी रास्ते बदलने की बजाय खुद को बदलना ज़रूरी हो जाता है, तो इनको भी खुद को बदलना ज़रूरी है। बैटिंग में पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है और जो इनसे तवक्को एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो पूरी हो नहीं पा रही। इन्होंने लेट डाउन किया है अभी तक साधारण को। बिल्कुल, जिस तरह आप पहले उनकी मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे, तो जब आपके दो सीनियर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो, जीशान अशरफ टीम के मेन खिलाड़ी हैं, ये देखिए 6 विकेट कीपर उनकी इस फुटवर्क से जो है वो खुश नहीं होंगे। दो सीनियर बैटर्स की बात करें सदर्न पंजाब की तो सुहेब मकसूद उनका ट्रम्प कार्ड थे, बैटिंग में एक्स फैक्टर थे, वो भी जख्मी होने की वजह से कुछ मैचों का हिस्सा नहीं रहे। आज वो टीम के साथ हैं ग्राउंड में, मुल्तान के लेग में उनकी खिदमात भी उन्हें हासिल होंगी। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इनके पास। ये मोइनुद्दीन है जो इब्तदाई मैचेस के बाद ड्रॉप हो गए थे अपनी ख़राब फॉर्म की वजह से। अहमद बशीर एक फास्ट बॉलर हैं जो सेंट्रल पंजाब से साधारण का हिस्सा बने, लेकिन वो ज़्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। आमिर यामीन, वो हैरानी हुई थी जब उनको नहीं खिलाया गया था, वो सेंट्रल पंजाब की तरफ चले गए। हालांकि उनकी इस टीम में जगह बन सकती थी बआसानी आमिर यामीन की। का मुकाबला शायद इमरान रंधावा से था और यूथ की तरफ ज्यादा तवज्जो दी ATF सदर्न पंजाब की मैनेजमेंट में, इसलिए आमिर यामीन को रिलीज कर दिया गया। 18 के बाद 170 पर 2। पहला ओवर आपका पहले किया से कितने पहले कितने तीन की आखिरी ओवर सान खान लास्ट ओवर साजिद भाई चेक की बहुत शो चेंज कर रहा हूं। ये आज के हीरो हैं सिंध के साइम अयूब, जिन्होंने 35 गेंदों में 56 रन बनाकर इस मैच में सिंध के लिए फाइट बैक किया। शर्जील खान ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग की। दोनों ने मिलकर 83 रन का जब ओपनिंग स्टैंड फराहम किया सिंध के लिए। उन्होंने बड़ी ताकतवर बुनियाद उठाई और उसी का उनकी टीम को सिला मिलने वाला है इस जीत की सूरत में, जो इस ओवर में भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए सऊद और उमैर की कि आखिरी ओवर की तरफ ना जाएं।
कैच और उठाकर खेला सऊद ने, उनके कैच आउट होने का खतरा और आउट हो गए। एक आसान सा कैच दे बैठे, सूरज आंखों में आ रहा था इमरान रंधावा के, लेकिन गेंद को फिर भी उन्होंने हाथों हाथ लिया और मिल गई यहाँ हसन को विकेट। बहुत ज्यादा क्रॉस द लाइन खेल गए, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे तो उन्हें ड्रैग करना पड़ा और ज्यादा सीधा खेलना चाहते थे, टाइमिंग हासिल नहीं कर सके, इसलिए सीधा फील्डर के पास चली गई। साउथ की इनिंग्स का खात्मा 14 रन पर 170 पर 3। जी बैट्समैन इन फर्स्ट बॉल दानिश अजीज को भेजा गया है ताकि वो विनिंग शॉट खेलें, अपना खोया हुआ एतमाद बहाल करें मुल्तान जाने से पहले। अभी तक जो हेड कोच हैं उनने अपना एतमाद इन पे बरकरार रखा हुआ है। ये बड़े यादगार दिन रहे कई क्रिकेटर्स के लिए, खास तौर पर कई जो खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे थे। जैसे आज हमने देखा कि सिंध की टीम में आसिफ महमूद को शामिल किया गया, उन्होंने अपनी रफ्तार से हर एक को मुतासिर किया। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी यहाँ दिखाई। अली इमरान ने अपनी बैटिंग का लोहा मनवाया पिंडी में। आमिर जमाल ने जिस तरह खुलकर बैटिंग की, एक पावर हिटर होने का सबूत दिया। इरफान न्याजी वो भी नजरों में आए। शकील छक्का लगाकर ये विनिंग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आखिर में ये बाउंड्री से भी तकरीबन 7 गज पहले ही एक कैच आउट हो गए। बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचा सके अपने शॉट को। आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, बहुत खुशाइंद है। इस दफा हमें टीमों में भी नजर आया कि ज्यादातर इन्हिसार किया गया नौजवान खिलाड़ियों पर। या सिंध के अबरार अहमद एक और नौजवान बॉलर, बेपनाह सलाहियतें हैं, मिस्ट्री स्पिन का उन्होंने जादू जगाया है इस पिच पर जहां बहुत ज्यादा मदद नहीं थी स्पिनर्स के लिए। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की है सेंट्रल पंजाब के लिए, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा खेला, लेकिन फिर से रंधावा ने रास्ता रोका, एक ही रन बन सका। ने अपने खिलाड़ियों के नाम लिए, उनमें से टूर्नामेंट की लीडिंग टीम है एक खिलाड़ी भी नहीं है। ये वजह है कि वो बहुत टीम स्पिरिट से खेलते हैं। ये मोहम्मद सरफराज हैं, इनको भी शाबाश मिलनी चाहिए। ये हेड क्यूरेटर हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ये लीजिए एक और विकेट, बहुत उम्दा कैच लिया, गेंद तेज से आ रही थी और दानिश अजीज एक बार फिर आए और गए। और एक ऐसी गेंद को जो खासी शॉट थी, बड़ा वक्त मिल गया था, उसको सीधा उन्होंने इमरान रंधावा की हथेलियों में मार दिया। बिल्कुल ही कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, शॉट जोरदार था। मॉडर्न डे बैटर्स आजकल स्वीपर्स को खातिर में नहीं लाते और उम्मीद रखते हैं कि वो उनको क्लियर कर देंगे। इस मरतबा फ्लैट गेंद गई सीधी इमरान रंधावा के पास, अच्छा कैच थामा उन्होंने। सिंध 173 पर 4। आइए जी। दो विकेटें पहले ही गिर चुकी हैं और इस ओवर में सिंध ये मैच खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। हसन ने लूज गेंद पर विकेट मिली। सरफराज अहमद आज उनका मूड नहीं था बैटिंग करने का, लेकिन आना पड़ा है।
क्या स्वीप शॉट मारेंगे विनिंग शॉट के लिए? भी अच्छी तरह जानते हैं सरफराज को, इसलिए विकेटों से बाहर बॉल की। ये देखिए दानिश अजीज ने वेट किया और छक्के के लिए जाना चाहते थे, एंगल से बॉल को अच्छा पिक किया रंधावा ने, क्योंकि बिल्कुल सूरज की मुखालिफ सिमत में देख रहे थे। दूसरा कैच इस ओवर में उन्होंने हासिल किया। इसका मैच के नतीजे पर तो कोई असर ना पड़े, लेकिन वो जो सिंध की कोशिश रही होगी नेट रन रेट इंप्रूव करने की, उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब सिर्फ 2 रन की जरूरत है और ये आखिरी 6 गेंदें हैं ये बाकी रह गई हैं और बॉलिंग करने के लिए इलियास को लाया जा रहा है। इनकी टीम जो है बहुत ज़्यादा डीप लेकर चली गई इस रन चेज को। हालांकि इस मुकाबले को पहले भी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि 170 तक उनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट थे और दोनों जो बैट्समैन हैं सऊद शकील और उमर बिन यूसुफ, इन्होंने ज़्यादा ख़तरात मोल लिए भी नहीं और शायद इस पार्टनरशिप को अपनी पावर गेम पे बहुत ज़्यादा यकीन था भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन कुछ भी हो, जो इनकी सिंध की आज की आखिरी 5 ओवर्स की परफॉर्मेंस है, वो इस टूर्नामेंट में उनकी जो 5 ओवर्स की परफॉर्मेंस है उसके आदाद शुमार में कुछ खातिर ख्वाह बेहतरी भी नहीं लाएगी और यही इनकी खेल की कमज़ोर कड़ी रही है पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ इसी वजह से इनकी नेट रन रेट जो आज और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी वो नहीं हो सकेगी और अब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। सरफराज अहमद के इस 1 रन के साथ उमर बिन यूसुफ यहाँ इस मैच को ख़त्म कर सकते हैं। बाजार रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है, सेट बैट्समैन हैं, उमर चाहेंगे कि बाउंड्री लगाएं, अपनी टीम को जीत दिलाएं और अपने 50 रन भी पार कर लें। तमाम ही फील्डर्स को लगता है सलमान अली आगा आगे बुला लेंगे। ऑफ साइड पर तो 5 फील्डर्स हैं दायरे में, थर्ड मैन का फील्डर भी ऊपर बुलाया है। ऑन साइड पे भी 3 फील्डर दायरे के अंदर हैं। इलियास ऑल एक्शन क्रिकेटर है, या यॉर्कर करना चाहेंगे, लेकिन बाउंसर फेंका और भरपूर जवाब दिया, जोरदार छक्का लगाया और लाजवाब पुल शॉट उमर की जानिब से और सिंध ने ये कामयाबी 6 विकेट से हासिल कर ली और सिंध ने अपनी बर्तरी मुकम्मल तौर पर साबित की। हालांकि 175 ये आसान हदफ नहीं था, लेकिन 83 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप जो शर्जील और साइम ने टीम को फराहम कर दी, उसके बाद ये हदफ बहुत ज़्यादा आसान नजर आने लगा। सऊद शकील ने भी एतमाद दिखाया और ख़ास तौर पर उमर बिन यूसुफ जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपना लोहा मनवा लिया है। बिल्कुल, और बेशक ये मैच आखिरी ओवर तक जरूर गया है, लेकिन ये रन चेस काफी कंफर्टेबल थी। आखिरी 5 ओवर्स में किसी लम्हे पर भी ये नहीं लगा कि ATF सदर्न पंजाब की टीम ये मैच जीत पाएगी और उमर बिन यूसुफ की निस्फ सेंचुरी की बदौलत सिंध ने ये कामयाबी हासिल की। उमर बिन यूसुफ ने अपने T20 करियर में ये संग मील पहली बार अबूर किया है। 50 रन उनके पहले थे और बाउंसर को बड़े एतमाद से उनने खेला, अगला पांव पीछे हटाया, इसलिए हाथ खोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और ये विनिंग शॉट खेलने की एक अपनी तमानियत होती है, जब आप नॉट आउट वापस जाते हैं अपनी टीम को जितवा कर, तो आप स्टार से सुपरस्टार बन जाते हैं और ड्रेसिंग रूम, साथी खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ, कोचेस की नज़रों में आपका रुतबा बढ़ जाता है। उमर बिन यूसुफ के साथ आज ऐसा ही हुआ होगा। सऊद शकील आज ज़्यादा खुश कप्तान है। अनवर अली इन्होंने अच्छी बॉलिंग की और स्कोर को इस कदर आगे बढ़ने नहीं दिया सदर्न पंजाब का कि जो इनकी बैटिंग की पहुंच से बाहर हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी सिंध की, जो आखिरी 5 ओवर में उनका पावर हिटिंग का मसला है, उसके अलावा उन्होंने एक कंप्लीट मैच खेला। बॉलिंग में अच्छा आगाज हासिल किया, शुरू में 5 खिलाड़ी जल्दी आउट कर लिए
6 खिलाड़ी बल्कि सदर्न पंजाब के फाइट बैक की दाद देनी होगी, लेकिन जब वो फील्ड में आए तो बिल्कुल भी रन चेज में वो किसी भी लम्हे मैच में नहीं रहे। उसकी वजह आप टॉप पे पार्टनरशिप देख सकते हैं। शर्जील खान ने 49 रन बनाए सिर्फ 26 गेंदों पर। साइम अयूब ने अपनी शानदार फॉर्म का सिलसिला जारी रखा, एक और हाफ सेंचुरी बनाई और उमैर बिन यूसुफ ने मैच को खत्म किया, 54 पे नॉट आउट आए। आखिर में विकेटें जरूर गिरी सिंध की, लेकिन जैसा मैंने कहा किसी भी स्टेज पर वो इस रन चेज में मुश्किल में नजर नहीं आए। सलमान अली आगा आज विकेट नहीं ले सके, इससे उनकी टीम मुश्किल में रही। समीन गुल भी निस्बतन महंगे साबित हुए। एक खिलाड़ी को अली माजिद और इलियास ने आउट किया। हसन खान ने अपने आखिरी ओवर में 2 विकेटें हासिल की, लेकिन ये सब कुछ नाकाफी रहा एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए। साइम अयूब और शर्जील की पार्टनरशिप ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन को महसूस किया। शर्जील अपनी बेस्ट फॉर्म में नजर आए। साइम अयूब का फुटवर्क, स्पिन और पेस के अगेंस्ट शानदार था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किस्मत का अमल दखल भी रहा। शर्जील को जब विड्थ मिली तब भी उन्होंने उसका फायदा उठाया। शॉर्ट ऑफ लेंथ, फुलर लेंथ, तमाम ही किस्म की गेंदों के लिए वो बिल्कुल तैयार थे और ये शॉट उनका सिग्नेचर शॉट है। शर्जील ने हर वक्त ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, प्लेसमेंट भी अच्छी थी। यहां साइम अयूब इस शॉट के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। बड़ी शॉट खेलने से झिझकते नहीं है साइम। माजिद की एक्स्ट्रा पेस ने शर्जील को परेशान किया, लेकिन टोकों का सिलसिला जारी रहा इस पार्टनरशिप में। ये शायद सबसे बेहतरीन शॉट था, बिल्कुल टाइम किया हुआ स्ट्रोक। यहाँ एक लम्हे को ऐसा लगा कि शायद ये बम बॉल होगा, लेकिन थर्ड अंपायर ने फैसला दिया बॉलर के हक में। ये शायद एक क्रूशल लम्हा था जब साइम का कैच ड्रॉप किया रंधावा ने। उमैर बिन यूसुफ का आगाज जारहाना था और जब ये दोनों विकेट पर थे तो बाउंड्रियों की एक झड़ी लगी रही। यहां थोड़ा चूक गए, फुल टॉस का पूरा फायदा नहीं उठा सके साइम अयूब, लेकिन उमैर ने वहां से चार्ज संभाला। सऊद के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी थी, ज्यादातर रन उमैर बिन यूसुफ के बल्ले से आए। कहीं सऊद ने भी कोशिश की उनका साथ देने की, लेकिन आज बिल्कुल ही डिफरेंट टच में नजर आया उमैर बिन यूसुफ। T20 करियर की पहली नेस्ट सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की। विकेटें जरूर गिरी। हसन खान के एक ओवर में 2 विकेटें आई। दानिश अजीज एक मरतबा फिर नाकाम रहे, हालांकि ज्यादा कुछ बचा नहीं था जब वो खेलने के लिए आए थे। और ये वो लम्हा जब पता की मोहर सबकी उमैर बिन यूसुफ ने सिंध की टीम के लिए। उमैर बिन यूसुफ आज मैन ऑफ द मैच भी हो सकते हैं और ये इस मैच का खुलासा है। 175 रन स्कोर किए एटीएफ सदर्न पंजाब ने 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। हसन खान ने 48 रन बनाए। जैन अब्बास जो ओपनर हैं उनने भी 48 रन स्कोर किए। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। बड़ी उम्दा बॉलिंग की मिस्ट्री स्पिनर ने और जवाब में साइम और उमैर की निस सेंचुरी और शर्जील के 49 रन से तकवीयत पाई सिंध ने और उन्होंने मैदान मार लिया 6 विकेट से। पॉइंट्स टेबल पर खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है उसका अभी भी बोलबाला है। नाकाबिल शिकस्त से 5 मैचेस के बाद उनने 10 पॉइंट्स हासिल किए। सिंध की टीम के 6 पॉइंट्स हैं। आज उनने अपनी तीसरी फतह हासिल की। बलूचिस्तान की टीम की जो नेट रन रेट है वो सिंध से कम पड़ गई है, इसलिए वो तीसरे नंबर पर हैं। एटीएफ सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न के पॉइंट्स बराबर हैं। सेंट्रल पंजाब को खासी मेहनत करना होगी मुल्तान पहुंचकर अगर उन्होंने फाइनल 4 में जगह पानी है। मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये जानिएगा एक वक्फे के बाद।
Hello and welcome to the post-match presentation of match 16 between ATF Southern Punjab and Sindh. Another good game, this time rarities where you see a side chasing, winning a match here. And it happened today. Sindh won this by 6 wickets and a comfortable win at the same time. Valuable 2 points added to their table. Before I call on the captains and the player of the match, I'll welcome Mr. Mohammad Ramzan, manager of Kingdom Valley. Welcome, sir. And we'll now invite the Kingdom Valley player of the match. He'll get a trophy, and at the same time, he gets 25,000 rupees cash from Mr. Ramzan. And that will be Saim Ayub for his brilliant knock of 56 of just 35 balls. And that includes 7 boundaries and 2 sixes. He's leading from the front in sublime form. And his batting, a treat to watch. And well-deserved man of the match. We'll have a quick word with Saim. साइम शानदार फॉर्म चल रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी बैटिंग को. कुछ बात करते हैं गेम प्लान्स की, जिस तरह आप आते हैं ओपन करने के लिए. जैसे आज आप आए तो छोटे टारगेट्स रखते हैं कि पावर प्ले में पहले क्या करना है, या आपके दिमाग में एक टोटल होता है टीम के लिए? जी अल्लाह का शुक्र है इस जीत के लिए. और सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाकी जो मेरे टीममेट्स हैं उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी, ख़ास तौर पे शजील भाई की और अबरार की और उमैर यूसुफ की. इनफैक्ट मैं अपना मैन ऑफ द मैच उनके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ. और दूसरा जो आप गेम की बात कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर हम चेस करें तो जैसे 7-8 का एवरेज है तो उसको 8.5-9 पे लेके जाएं, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलें, अपनी टीम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी करें. आपने शर्जील का जिक्र किया, तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर फेल होता है तो फिर आप अग्रेसिव रोल ले लेते हैं. आज शर्जील ने थोड़ा हिटिंग की तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश थे. ये एक डेलिबरेट चीज़ है या आपके पास लाइसेंस है कैप्टन की तरफ से कि अपना गेम खेलें? जी बिल्कुल उनकी तरफ से लाइसेंस है. और अगर विकेट गिरती है तो इस पे इससे टीम की बैटिंग के पेस पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. और वही मोमेंटम लेके चलते रहे हम लोग थ्रू आउट ऑल द इनिंग. शर्जील भाई आउट हुए तब भी मैं यही कोशिश कर रहा था कि 8-9 की एवरेज चलती रहे. तो यही है, बस डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं और इंशाल्लाह इसी से रिजल्ट मिलेंगे. और चलिए, आप 90s तक तो कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं मुल्तान में यू गेट 100. Congratulations. That was Saim Ayub, the player of the match. And now I'd invite the captain of ATF Southern Punjab, Salman Ali Agha. सलमान, गेम्स ऐसे अच्छे हो रहे हैं, कुछ कहीं ऐसा लगता है कि एक विनिंग पोजीशन से ग्रिप जो है वो लूज़ हो जाती है टीम की? कि मैंने सुबह टॉस में ही बोला था कि जो हम सम टाइम की मोमेंट्स होते हैं मैच के वो लूज़ करते हैं. तो जैसे आज 12 ओवर में हम ऑलमोस्ट 100 रन थे और एकदम 2 विकेटें गिर गई, जिसकी वजह से आपका 20-25 रन या 15-20 रन टोटल में फ़र्क डलता है और वो मैच में फ़र्क डालता है. कहीं आपको लगता है, क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर में तो इतनी शफलिंग नहीं की, लेकिन कहीं कोई मिसिंग लिंक है आपको लगता है बैटिंग में जो पूरा कर सकते हैं, चाहे वो पावर हिटर्स में हो या फ्रंट आपको सही ओपनिंग पेयर नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं क्योंकि शोएब भाई की जो इंजरी है वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो T20 में परफॉर्मेंस करते हैं साउथ पंजाब से, तो उनका ऑब्वियसली एक डिफरेंस आप कह सकते हैं. लेकिन फिर भी हमारी यंग साइड है, इनएक्सपीरियंस है, सम टाइम वो इनएक्सपीरियंस हमारी बैटिंग में नज़र आता है. लेकिन कोशिश यही करेंगे, अभी यहाँ पर नेक्स्ट 4 मैचेस हमारे पास उधर हमारे होम टाउन में हैं, तो कोशिश यही करेंगे वहाँ पर जो है ना टेबल को टर्न अराउंड करने की कोशिश करें. आज के वैसे आखिरी सवाल आपसे करता हूँ. 173 एक अच्छा टोटल है आपने किया, लेकिन आपको कहाँ लगता है कि वीक लिंक रहा बॉलिंग में? आई थिंक जब आप 175 करते हो तो आपको पावर प्ले अच्छा बॉलिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसमें हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके क्योंकि वो ऑलमोस्ट 60-70 रन पावर प्ले बना रहे थे. उसके बाद फिर अगर आप विकेटें नहीं लेते तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको 7-8 रन बनाने पड़ते हैं. और जैसे आप विकेट शुरू हो गए हैं पिंडी में, 7-8 रन बनाना ईजी है. चलिए, गुड लक टू यू इन मुल्तान. Thank you very much. Salman Ali Agha, the captain of ATF Southern Punjab. Now Saud Shakil, I would like to join. Would like to have him here with us, the captain of Sindh, the winning captain. सऊद, जब आपने टॉस के टाइम पे पहले फैसला किया कि हम चेज़ करेंगे, माइंड में ये था, क्योंकि अब जितना देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है कि चेज़ करना मुश्किल हो रहा है, फाइटिंग टोटल्स हो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा. क्या वजह थी कि आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई भी टोटल हो आज कर लेंगे? मैं अपनी बैटिंग को लेकर आज काफ़ी कॉन्फिडेंट था. मैंने एक एक्स्ट्रा बैटर भी खिलाया हुआ था, तो मेरी स्ट्रेंथ आज बैटिंग थी, तो बस मैंने उसको बैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे फेवर में. जब आप बॉलिंग करने आए थे तो आपकी नज़र में 175 यहाँ पे गेटेबल था, इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको लगा थोड़े ज़्यादा दे दिए 15-20? जिस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ था तो इसको 165 पे फिनिश होना चाहिए था. एंड में आसान खान ने अच्छी बैटिंग की वहाँ से, लेकिन बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है. अबरार मीर हमजा एक्सेप्शनल बॉलिंग की उन्होंने. हो सकता है आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जायद महमूद को रेस्ट करा के आपने कुछ फास्ट बॉलर्स खिलाए कंडीशन बेस्ड. अब मुल्तान की लेग के लिए आप जा रहे हैं, कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे, जिनको आप बेहतर करना चाहते हैं एज ए टीम? देखा जाए तो हमने यहाँ पे स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया था और हमारा इस लेग में एंड भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ. तो मुल्तान को जाके असेस करेंगे, उसके हिसाब से फिर फर्दर प्लान करेंगे. चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. गुड लक इन मुल्तान. थैंक यू. So, match number 16 comes to an end, and that was the last game here in Pindi Cricket Stadium. In a couple of days, we'll have more action in Multan. That's all from the presentation.
Thank you very much, Sikandar. And as he said, the Pindi leg has come to an end. The action will resume in a couple of days' time in Multan. The first match will be Northern versus Sindh, and Balochistan will lock horns with Central Punjab on that first day. The semi-finals will be on the 18th of September and the grand final on 19th. And this also concludes the action from Rawalpindi Cricket Stadium. I hope you enjoyed our coverage along with our production team. I thank you very much for being with us, and we look forward to seeing you in Multan with more action in just a couple of days' time. Until then, it's good night from Rawalpindi Cricket Stadium.